A very good evening, all. I myself, Dr. Rishi Lodaya, practicing pediatrician at the Children Clinic Koradi, also attached to Matru Seva Sangh. I welcome you all for this today's panel discussion on topic social media addiction, for which we have two renowned speakers along with moderator. First of all, I thank our IMA Nagpur President Dr. Archana Kothari Madam for considering me and giving me opportunity for today's session. I invite Nagpur IMA Dr. Archana Kothari Madam for welcome address. Thank you, Rishi. On behalf of Nagpur IMA, I welcome you all to this webinar on very important topic, social media addiction. As you all know, the types of social media that they are networking sites like Facebook, image sharing and message sharing sites. Then there are video sharing sites. There are social blogging sites and social community and discussion sites. I want to ask you one question. To which category you belong? Are you stressed or blessed, or are you social media obsessed? So if you ask the question, you will get the answer yourself. We all have realized, especially in this corona period, that how important social media is. Yet, the amount of time you are engaged with social media, the type of social platform you are using has its positive and negative impacts on your mind and body. Today, we have eminent faculties from our Nagpur. They are national, international faculties. Dr. Sudhir Bhave sir, he is a well-known psychiatrist. And we have Dr. Rajiv Mohta. He is a pediatrician and adolescent counselor, and many more attached to his name. Rishi will tell you. And a very versatile moderator we have, Dr. Manjusha Giri. She is immediate past secretary of Nagpur IMA. So I am very much sure that today this program will be of lot of benefit to you all, those who are attending. And without taking much of your time, I ask Rishi to please proceed further. Over to you, Rishi. Thank you, ma'am. Today, our topic is social media addiction. Social media has almost completely changed how many of us communicate, and it can be useful way to stay connected. Due to effect that it has on brain, social media is additive both physically and psychologically. It has both negative and positive effects, which we are going to discuss on panel by our speakers. We have two speakers, Dr. Sudhir Bhave sir and Dr. Raju Mohta sir, Dr. Manjusha Giri. Dr. Sudhir Bhave sir is a professor and head department of psychiatry, NKP Sadhme Institute of Medical Science and Lata Mangeshkar Hospital, Nagpur. He is also guide and examiner of MD Psychiatric in MEHS. He is national chairperson of Cyber Psychology and Mental Health Committee of Indian Psychiatry Society. He is editing first book in world on cyber psychiatry. He has been national chairman and convener of various committee of Indian Psychiatry Society. He was past president of Indian Psychiatry Society in 2008 and 9, and was also past president of Vidarbha Psychiatry Society in 2003 and 4. He was past president of AMS also. He had many publications in national and international journals. He is also winner of Nagpur Bhushan Award in 2011 and 12, given annually to one individual from city for professional social excellence. Had a CD of vocal music by him released in January 2010. Dr. Bhave sir had also played key role in increasing mental health awareness in central India, especially in the fields of depression, suicide, and in schizophrenia. The second speaker, Dr. Raju Mohta sir is there. Dr. Raju Mohta sir is a consultant pediatrician and adolescent health specialist counselor.
He is resource person NCPCI New Delhi from 2019. He is one of the panelists, Deputy of Director, Department of Education, Government of Maharashtra from 2019. Dr. Raju Mohta sir is national trainer for various training and skill building programs for adolescent teachers, parents, doctors, nurses, and NGOs. He is master trainer, life skill education and training, and winner of various state and national awards, including Dr. Anandibai Joshi Award and Shiv Chhatrapati Award by Government of Maharashtra. His article Fulu Dya Pankhanna, a weekly feature in Maharashtra Times Mata on mental health of adolescents. And our moderator, Dr. Manjusha Giri ma'am, she is a neurodevelopmental pediatrician at Neuron Hospital. She is immediate past honorary secretary of IMA Nagpur. As a chairperson, Adolescent Health Education Committee, IMA Maharashtra State. She was executive committee member of IAP and AHA Nagpur. She was ex-vice president of AHA Nagpur and ex-treasurer of IMA Nagpur. Right now, she is working with Vardhan and Childline. So now I hand over for further proceeding to our moderator, Dr. Manjusha Giri. Thank you. Thank you, Dr. Rishi. Namaskar. I am thankful to Dr. Rishi Lodaya. Thank you, Rishi. Dr. Archana Kothari Madam and Dr. Rajesh Savarbande, President and Secretary of IMA Nagpur, for involving us in this special program of adolescent related program that is social media addiction. And before giving chance to our panelists, I will narrate a few lines. Okay, so सारी दुनिया से जुड़ जाओ जब भी तुम इंटरनेट चलाओ, कोई भी जानकारी गूगल कर लो, मेरे जरिए ब्रह्मांड टहल लो, Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स पर मूवी देखो, OLX पर कुछ भी बेचो, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर लो, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लाइक्स ले लो, ऑनलाइन गेम्स खेलो, ट्विटर पर पोल खोलो, इन सब से जब तुम थक जाओ, मेरे जरिए ज्ञान जुटाओ, सब प्रश्नों के उत्तर दे दूं, सब प्रश्नों के मैं उत्तर दे दूं, जानकारी के साथ कंफ्यूज भी कर दूं. सो हमें जो जानकारी मिल रही है उसे हम किस तरीके से यूज करना है वो आज के सेशन में हमें सीखना है. दैट्स वाई सब प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए हमारा आज का सेशन हमने सोशल मीडिया एडिक्शन का रखा हुआ है. एक बात का ख्याल रखना, सही दिशा में इस्तेमाल करना. जो कोई हो साइबर अपराध अगर जेल का तय होगा सफर. इसके साथ में हमारे पैनलिस्ट को अब तैयार होने के लिए कहूंगी. सो 1 बाय 1 क्वेश्चंस हमारे आएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में वो टाइप कर दे, सो दैट आफ्टर द क्वेश्चन आंसर सेशन जो पैनलिस्ट का होगा उसके बाद हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो मेरा पहला अपने जो ओपनिंग बैट्समैन है वो है डॉक्टर सुधीर भावे सर, और आखिरी का छक्का मारेंगे मोहता सर. सो सुधीर भावे सर से मैं पूछना चाहूंगी कि हम सोशल मीडिया किसे कहेंगे. बहुत सारी चीजें आएंगी सोशल मीडिया, तो हम सोशल मीडिया किसे कहेंगे और इसके इस्तेमाल का प्रमाण कितना है, कितने हद तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओवर टू यू भावे सर. सोशल मीडिया एक बहुत आजकल आम शब्द हो गया है. सोशल मीडिया अगर हम देखें तो अगर उसको अपने को परिभाषा देनी है, डिफाइन करना है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि कंप्यूटर मीडिएटेड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी उसमें आमतौर पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, भले वो आपके सेलफोन के जरिए हो या टैबलेट के जरिए हो या डेस्कटॉप हो या जो भी हो, लैपटॉप हो, तो एक कंप्यूटर होना चाहिए. और मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म, मीडिया यानी आप फिर उसको टेक्स्ट में भेजो या ग्राफिक्स, कोई अपने फोटोग्राफ डालो उस पर, कोई वीडियो डालो, पर बेसिकली जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में कंप्यूटर मीडिएटेड टेक्नोलॉजी के जरिए अपना मटेरियल शेयर करते हैं, तो ऐसी जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग सोशल मीडिया कहेंगे.
दूसरा आपने पूछा कि इसका प्रमाण क्या है। मेरे ख्याल से ये सभी को अंदाजा है कि प्रमाण दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी अगर आप लोग, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आज आप गूगल पे जाके एक ऐसा कुछ टाइप करो कि प्रिवेलेंस ऑफ सोशल मीडिया यूज इन द वर्ल्ड या इन इंडिया, तो बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे और आप देखेंगे ग्राफ ऐसा तेजी से ऊंचाई की ओर जा रहा है। तो प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है। अब कुछ उदाहरण अगर देना चाहूं तो दुनिया में फेसबुक पे करीब 2.5 अरब लोग हैं, 2.5 बिलियन पीपल अराउंड फेसबुक। इसी तरह यूट्यूब, व्हाट्सएप, इस पे 1 अरब लोग हैं। इंस्टाग्राम पे 1 अरब लोग हैं। अगर भारत की ओर मुड़ते हैं तो भारत में भी प्रमाण बहुत ज्यादा है और बहुत सारे सोशल मीडिया में भारत 1 नंबर पे है। जैसे व्हाट्सएप में इंडिया इज नंबर 1 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। मेरे ख्याल से हम लोग सुबह उठने के बाद जो व्हाट्सएप पे लग जाते हैं और रात तक अनगिनत बार मैसेजेस का आदान प्रदान करते हैं, वो एक आई थिंक इट्स रिफ्लेक्टिंग दैट टेंडेंसी। फेसबुक अगर देखते हैं तो फेसबुक के 32 करोड़ यूजर्स भारत। कल्पना करें कि जहां भारत की आबादी 125 करोड़ है, उसमें से 32 करोड़, यानी कितना बड़ा आंकड़ा है। 1/4 से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा फेसबुक पे है। इंस्टाग्राम पे करीब 8 करोड़ और फेसबुक मैसेंजर पे करीब 1 करोड़। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े नंबर है मंजूषा जी। यानी जो पहले था कि प्रभाते कर दर्शनम, तो अभी हो रहा है प्रभाते मोबाइल दर्शनम। नहीं ब्रश करने के बाद, कई बार तो ब्रश करने के पहले भी मोबाइल शुरू हो जाता है। नहीं, अपना खुद का भी बताती हूँ सर। उठते ही पहले देखते हैं कि रात भर में क्या मिस किया हमने। सो इतना ज्यादा इसका प्रमाण है। और एक सवाल मैं करना चाहूंगी सर, हर चीज या हर वस्तु के साथ उसकी कुछ अच्छाइयां भी होती है, कुछ खामियां भी होती है ना? इसी तरह हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की अच्छाइयां तथा खामियां क्या है। पहले मैं अच्छाइयों पे आऊंगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा बोलबाला है कि अच्छा ही देखना है, बुरा है बुरा है बुरा है, तो वैसा नहीं है। काफी अच्छाइयां हैं। जो अच्छाइयां मेरे दिमाग में आती हैं वो ये है कि एक तो आप में और लोगों में कनेक्टेडनेस होती है, इसमें कोई शंका नहीं जी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इस्तेमाल बीइंग कनेक्टेड है। अब वो जो हमारा लोगों से कनेक्शन जुड़ता है वो अपने सगे संबंधियों के साथ जुड़ता है, मेरा दोस्त परिवार है या मेरे रिश्तेदार है उनके साथ जुड़ता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में जुड़ना। जैसे आज का सेमिनार अरेंज करना था, ऑर्गेनाइज करना था, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, उस पे भी कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। ये एक बहुत बड़ा फायदा है सोशल मीडिया का। या फिर लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़ना, ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाना जिनकी मानसिकता, जिनका सोच विचार, जिनका दृष्टिकोण आपसे मिलता है। तो कनेक्टेडनेस इज अ मेजर थिंग। दूसरा है कि सोशल मीडिया में नॉलेज शेयरिंग बहुत होता है, यानी ज्ञान का आदान प्रदान। बहुत सारी बातें अपने को सोशल मीडिया के जरिए मालूम पड़ती हैं। अपने किसी दोस्त को कोई आवश्यक जानकारी मिली तो व्हाट्सएप पे अपने को भेजता है, जो पढ़ के अपन एनलाइटन हो जाता है, अरे वाह ऐसा है। एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा साधन है। एंटरटेनमेंट का जीवन में बहुत महत्व है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो कई तरह से हम लोग सोशल मीडिया पे खुद को एंटरटेन करते हैं। अब ये अलग बात है कि वो एंटरटेनमेंट कई बार ज्यादा हो जाता है। या फिर एल्ट्रुइज्म है, परोपकार है। सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद जिससे पैसे की गरज है, किसी का ऑपरेशन होने वाला है या कोई भी आर्थिक समस्या है, तो उसके लिए क्राउड फंडिंग आता है, यहाँ वहां से बहुत परोपकारी ढंग से होता है। और एक सोशल सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मैंने घर में किसी को खो दिया तो जो सपोर्ट के मैसेजेस आते हैं, आई एम विद द फैमिली, आई फुली अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड, तो क्या होता है कि उससे एक अपने को सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह सोशल मीडिया के फायदे काफी हैं अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि सोशल मीडिया से समस्याएं क्या क्या हैं। ये लिस्ट दुर्भाग्य से ज्यादा लंबी है। आज सुबह मैं दिमाग में सोच रहा था कि सोशल मीडिया से नुकसान क्या क्या है, तो 12-13 तो मैंने ऐसे ही मनी मन गिन लिए। अब हर एक के बारे में यहाँ बहुत विस्तृत ढंग से जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमको एक ओवरव्यू चाहिए तो सबसे पहला मैं कहूंगा सोशल मीडिया एडिक्शन। डॉक्टर मोहता साहब शायद उसके बारे में बताएंगे आगे। एक उसकी आदत हो जाना, एक व्यसन जड़ जाना। दूसरा होता है कि सोशल मीडिया के जरिए कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े पैदा होते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ डाल दिया, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसने कुछ भला बुरा कह दिया, आपको और खराब लगा, आपने और भला बुरा कहा।
यानी जब फेस टू फेस संबंधों में सब अच्छा चलता था तो सोशल मीडिया पे कई बार झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, आपस में उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पे ज्यादा देर रहने से अपनी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान देना कम हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं रोज मान लीजिए 2 घंटे ही सोशल मीडिया पे हूँ, तो ये शर्तिया बात है कि उन 2 घंटों में मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो मैं अदरवाइज कर रहा होता। फिर उसके बाद है पोर्नोग्राफी। सोशल मीडिया द्वारा पोर्नोग्राफी शेयर होना बहुत ही आम बात है। व्हाट्सएप के जरिए पोर्नोग्राफिक वीडियोस, पोर्नोग्राफिक इमेजेस, केवल व्हाट्सएप नहीं बल्कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी एक बहुत कॉमन चीज है। जी हाँ, साइबर बुलिंग है, यानी स्कूल में जैसे दादागिरी होती थी वैसे साइबर स्पेस में बहुत दादागिरी चलती है। किसी को कुछ, खासकर यंग क्राउड में, किशोर अवस्था में बच्चों में एक दूसरे को भला बुरा कह दिया, उसमें और लोग जुड़ गए, तो ये जो बुलिंग होता है, साइबर बुलिंग, ये है। उसके बाद नींद एक बहुत बड़ी समस्या है, डॉक्टर मोहता शायद इसके बारे में और बताएंगे। और रात को देर रात तक सेलफोन लेके बैठे रहना, फिर अपने बेडरूम में सेलफोन रखना, जरा सी बात पे सेलफोन की तरफ ध्यान जाना, नींद एक सैक्रिफाइस हो चुकी है। जो रियल लाइफ में सोशलाइजेशन हो सकता है, यानी अगर मैं 2 घंटे सोशल मीडिया पे न रह के मैं किसी दोस्त को जाके मिलूं, उससे चर्चा करूं, तो ये जो रियल लाइफ सोशलाइजेशन, मेल जोल है, इसका प्रमाण काफी कम हो गया है। इनएक्यूरेट कंटेंट ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी गलत जानकारी सोशल मीडिया से मिलती है। कुछ ऐसी जानकारी आती है और दोस्त मुझे पूछता है कि अरे तूने पढ़ा क्या, वो ऐसा ऐसा है। मैं कहता हूँ यार ये पॉसिबल नहीं है। फिर किसी अच्छी साइट पे जाके देखो तो फिर पता पड़ता है कि व्हाट्सएप पे जो भेजा जा रहा है वो टोटली गलत है। तो इस तरह का गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना और कई बार लोगों का उस पर असर होना। पढ़ाई में गिरावट आना, अगर बच्चा 4 घंटे सोशल मीडिया पे बिता रहा है तो काफी समय वो अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहा है, ये तो पक्की बात है। और आखिरी में कहूंगा साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, यानी मानसिक समस्याएं, ये इस पे काफी रिसर्च हुआ है, काफी अनुसंधान हुआ है, और ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बच्चों में या बड़ों में भी एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी जहां बच्चे अति चंचल होते हैं या एकाग्रता कम होती है, तो इस तरह की कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं। तो ये ऐसे एक लंबी चौड़ी रेंज है जो कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से होती है। थैंक यू सर। मैं मोहता सर से पूछना चाहूंगी कि आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? दोनों की बातचीत, हम तीनों की बातचीत जो रहेगी, ये बहुत सारी ओवरलैपिंग रहेगी दोस्तों। ओवरलैपिंग रहेगी, क्योंकि सारी चीजें कॉमन हैं और सारी चीजें हम लोग आपस में शेयर करके बात कर रहे हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं, आप मुझे नहीं मालूम, पर आप अपने लिए होमवर्क करें कि आप में से कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है। आई बिलीव एक भी बंदा नहीं होगा जो सोशल मीडिया पर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फोटो भेज रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें हो रही हैं आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में, आपके परिवार में। अगर ये सारी चीजें सही से चल रही हैं तो जैसा भावे सर ने बताया, हम सही से सही दिशा में चल रहे हैं। जैसा मंजू ने बताया कि हमारी दिशा हमने ढूंढनी चाहिए और वो दिशा बराबर सही मिल गई तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इस पे मंजू की कविता पे कविता की 4 लाइनें सुना रहा हूँ आपको। मेरी फरमाइश थी सर आज। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न किसी को कम चाहिए, न किसी को गम चाहिए न किसी को कम चाहिए। वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जावे। हम लोग उस मुकाम पे आए हुए हैं जहां इंसान और इंसानियत का फर्क हमें समझना जरूरी है, और जब ये समझ जाएंगे तो शायद हमारे सोशल मीडिया का उपयोग सही से होगा। यानी अब आईपीएल के जमाने में हम विराट कोहली से धोनी जी की तरफ आ गए हैं। तो धोनी जी को, यानी मोहता सर को और एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, एडिक्शन क्या होता है और सोशल मीडिया से भी एडिक्शन हो सकता है क्या? देखिए, एडिक्शन को सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो लत है। हाँ। और लत किस चीज की नहीं लगती आदमी को, लत किसी चीज की भी लगती है, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ड्रग्स हो। और ये सारी चीजों की लत के साथ में हमारी लत होती है सुबह उठते बराबर हमने अखबार नहीं देखा, भाई आज तो मन नहीं लग रहा है,
दोपहर को 4 बजे चाय नहीं पी हमें तो हमारा सर दुखने लगा है। रात में सोते समय हमने पाँव नहीं दबाया तो हमें लगा कि यार बीवी ने पाँव नहीं दबाया, हमारे तो पाँव ही दर्द हो रहे हैं, अब नींद ही नहीं आ रही है। ये सारी सर कौन किसके दबाता है सर? उल्टा है हमारे घर में। तो ये सारी लतें जो हैं, ये आदतें हो गई हैं हमारी, किसी ना किसी रूप में हम किसी चीज के आदी हो चुके हैं, और वैसे ही हम हमारे मोबाइल के, हमारे स्मार्टफोन के आदी हो गए। हम आदत, यस एडिक्शन होता है। एडिक्शन कैसे नहीं होता? एडिक्शन बहुत बुरी तरीके से होता है, और ये हम संभालने के बाहर जा चुके हैं। इसके स्टैटिस्टिक्स भी बहुत बुरी तरीके से हमारे सामने आए हुए हैं, और लगता है कि पता नहीं दुनिया कहाँ जाएगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, और बच्चों के साथ में, एडोलेसेंट के साथ में, टीनेजर के साथ में शायद हम भी कहाँ जाएंगे। सही है। वो एडिक्शन जो होता है वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, नहीं? या सोशल मीडिया से हमें अगर एक्सरसाइज के ऐप अगर हम लेते हैं तो शायद अच्छी आदत भी हमें लग सकती है। अगर एडिक्शन को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा एडिक्शन नहीं होता कोई। अच्छा नहीं रहेगा। एडिक्शन अच्छा नहीं होता, आदत अच्छी हो सकती है। आदत अच्छी, लत अच्छी नहीं होती, व्यसन अच्छा नहीं होता, आदत अच्छी होती है। जैसा मंजू तुमने कहा कि एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छी आदत है, और अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी आदत में हम पड़ चुके हैं। अच्छे दोस्तों के साथ में रहना, अच्छी बातें करना, अच्छा टाइम शेयर करना, परिवार के साथ में, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में, जैसा भावे सर ने कहा कि हम कनेक्टेड होते हैं। हमारा परिवार मुंबई है, हमारा परिवार यूएस है, हमारा परिवार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं तो भी सिंगापुर में बैठा हुआ है, और हम उनके साथ में ये कोरोना टाइम्स में भी जुड़े हुए हैं। रोज वीडियो पे उन्हें देखते हैं, रोज उनसे बात करते हैं। ये अच्छाई है हमारे साथ में जुड़े हुए इस आदत की। पर इस आदत को अति आदत में अगर बदल दिया जाए तो इसे हम एडिक्शन कहेंगे, जहां हमसे कुछ पता नहीं है। यानी आज हमें यही सीखना है कि एडिक्शन से आदत में कैसे परिवर्तित होना है। बिल्कुल बराबर। रिवर्स में गाड़ी कैसे डालनी है हमने। गाड़ी सीखने के पहले, आरटीओ में जाने के पहले सबसे पहले रिवर्स सीखना पड़ता है, अदरवाइज वो गाड़ी आरटीओ फेल कर देता है। हम भी शायद इस एडिक्शन के साथ में अगर डी एडिक्शन प्रोग्राम की वजह से वापस अगर नहीं आए, या हमने वो रास्ता नहीं पकड़ा जहां हमें रहना चाहिए, तो शायद हम भी उस एडिक्शन के अधीन हो जाएंगे। और वो एडिक्शन इतना बुरा एडिक्शन है मंजू, इतना बुरा एडिक्शन है कि जिससे हम, भावे सर साइकियाट्रिस्ट हैं, वो जानते हैं, हम भी बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को हैंडल कर पाते हैं, और कई बार हम इन्हें रेफर कर देते हैं। मैं अपने घर का किस्सा सुनाता हूँ। 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा जब बाकी किसी से बात करने से कतराने लगा तो लगा क्या हुआ, मालूम पड़ा ये वीडियो गेम्स का आदी था। पर वो इतना आदी हो चुका था कि स्कूल से कंप्लेन आने लगी, पढ़ाई बंद हो गई, पढ़ाई पे मन नहीं लगने लगा, वो पढ़ाई से दूर हटने लगा, स्कूल जाने से कतराने लगा। स्कूल जाने के लिए जब जाता था तो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, अवॉइड करता था स्कूल जाना, होमवर्क करना बंद कर दिया, लोगों से आंखों में आंखें डालना बंद कर दिया, जो 6वीं 7वीं तक करता था। पर 8वीं से जो बदलाव आया, वो बदलाव 9th में इतना ज्यादा नोटिसेबल हो गया 1 साल के अंदर में। बचपन से वीडियो गेम खेलता था, मालूम था माता पिता को, माता पिता एक बड़े कंप्यूटर कंपनी के मालिक हैं, पर ये मालूम रहने के बावजूद भी हम उसे रोक नहीं पाए, और एक मुकाम ऐसा आया जहां हमने उसे शायद खो दिया। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 9वीं 10वीं को उसको बड़ी मुश्किल से हैंडल करते करते जब डी एडिक्शन प्रोग्राम में डाला गया, तो उस बच्चे को हम उस मुकाम तक ला पाए जहां वो 10वीं की एग्जाम दे पाए और 10वीं पास कर पाए। उसके बियॉन्ड अब उसका क्या होगा ये अभी हमें नहीं मालूम। ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डी एडिक्शन प्रोग्राम एंड रिहैबिलिटेशन अंडर द डी एडिक्शन प्रोग्राम। सर इसके अलावा भी एडिक्शन के कुछ क्राइटेरिया है क्या? देखिए, एडिक्शन के क्राइटेरिया को हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो एडिक्शन यानी एक लत, इसको हम डिफाइन करने के लिए अगर हम मैं एक्चुअली आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ। 6 प्रश्नों की एक तालिका है। इन प्रश्नों को अगर आपने बराबर उत्तर दिया तो आपके समझ में आ जाएगा कि एडिक्शन यानी क्या है। और इन 6 में से अगर आपके 2 या 3 प्रश्न इस डायरेक्शन में रहे कि हाँ भाई ये सही, मतलब इस दिशा में मैं हूं, तो आपको एडिक्शन हो सकता है। डू यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट सोशल मीडिया और प्लानिंग टू यूज सोशल मीडिया? हम यूज नहीं कर रहे हैं, पर हम सोच रहे हैं कि रात में क्या करूंगा, दोपहर को क्या करूंगा, सुबह क्या करूंगा, सुबह उठने के बाद क्या करूंगा, हाँ इस तरीके से फोटो डालूंगा, ये ट्वीट लिखूंगा, ये फोटो मैंने कल अच्छा देखा था, इसको मैं अगर ये करूं तो क्या अच्छा होगा। सो प्लानिंग अबाउट और थिंकिंग अबाउट द सोशल मीडिया इज फर्स्ट क्वेश्चन।
Second question is, do you feel an urge to use social media more and more? आप जितना यूज करते हैं रखते हैं, लगता है नहीं यार अभी ये चीज छूट गई, इसे और करना चाहिए मैंने, अरे यार देखो वो इतना अच्छा मैसेज था, अगर मैं भेज देता तो मेरा नाम कितना अच्छा होता लोगों के बीच में और लोग मुझे भी लाइक भेजते। तो ये अर्ज अगर हम में आ गई कि मैं ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, ट्विटर भी भेजूं, फेसबुक भी भेजूं, इंस्टाग्राम पे फोटो भी डालूं, आज रोज कम से कम 5 मिलियन यानी 50 लाख फोटोग्राफ रोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं। 50 लाख फोटोग्राफ दोस्तों, इमेजिन करिए कितने लोग इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे होंगे। सो अर्ज टू यूज सोशल मीडिया, देन डू यू यूज सोशल मीडिया टू फॉरगेट पर्सनल प्रॉब्लम्स? मुझे परेशानी है, परेशानी कोरोना की है, कोविड की है, अभी के दिनों में मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, पैसे नहीं है, काम नहीं है, जाऊं क्या, करूं क्या, लोगों से मिल नहीं सकता हूं, अपने घर में बंद चुका हूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? में लोगों ने मोबाइल को हाथ में लिया, स्मार्टफोन को हाथ में लिया और उस स्मार्टफोन के साथ में उन्हें वो आदत पड़ गई कि मुझे अब तो और मैं अपने प्रॉब्लम जब सोशल मीडिया पे जाता हूं तो मैं भूल जाता हूं ये बातें, और ये भूलने के लिए मैं फिर उसका फिर और उपयोग करने लगता हूं। तो भूलना, याद करना और कुछ करना, फिर याद आना, फिर और उसका उपयोग करना, और ग्रेजुअली मेरी जो समय है उस सोशल मीडिया पे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद का फोर्थ प्रश्न है, आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सोशल मीडिया विदाउट सक्सेस। मैंने कोशिश करी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, किसी ने कहा था नहीं रुक जाओ, रुकने की कोशिश करी, संभलने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने वो मोबाइल बाजू में जो रखा था वो उठा ही लिया। मैंने सोचा था 1 घंटा मोबाइल का उपयोग नहीं करूंगा, पर मैं माना नहीं, मेरा दिल नहीं मारा, मेरा हाथ नहीं मारा, मेरा दिमाग नहीं माना, मैंने वो उठा ही लिया और आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। Then do you become restless or troubled if are unable to use social media? आप लोगों में से कितने लोगों को परेशानी होती है जब लाइन चली जाती है और आपको लगता है कि यार मेरा मोबाइल अब चार्ज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा, am I going to miss out something? मेरा क्या होगा, कैसे होगा, चार्ज नहीं हुआ है, मेरा मोबाइल बैंक जो था वो चार्जिंग बैंक जो था वो भी डिस्चार्ज हो चुका है, अरे यार मैं सर पे हाथ मारता हूँ और अपने आप को कोसने लगता हूँ कि काश मैंने वो मोबाइल बैंक तो चार्ज करके रख दिया होता। ये जो मुकाम आता है जब हमें लगता है कि यार am I missing something, ये एक मुकाम होता है जहां पे हमें लगता है कि नहीं अब I am becoming restless because I'm not able to use that social media or I'm not able to use that mobile. Then use social media so much that it has a negative impact on your job, work or studies. मेरी पढ़ाई पीछे जा चुकी है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक स्टैटिस्टिक्स पब्लिश हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट जॉब पीपल, almost 30% of them use social media for 2 hours and 35 minutes during their job work. 13% लोग जो हैं वो अपने काम में जो काम उन्होंने उस दिन करना चाहिए उससे पीछे चल रहे हैं। अगर ये उस मुकाम पे जॉब के दौरान भी चल रहा है, अभी तो हम खाली बैठे हुए हैं दोस्तों, इस समय क्या करें हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो सोशल मीडिया का यूज तो बढ़ ही गया है। पर क्या वो आदत है, क्या वो एडिक्शन है, क्या आप इसे छोड़ सकते हैं, क्या उससे हट सकते हैं दूर, इसका हमें सोचना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। यानी ये लत इतनी बेकार है कि हमारे दिलो दिमाग पे, हमारे शरीर पे हर जगह छाई हुई है। मैं भावे सर से पूछना चाहूंगी कि उसमें आप और कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से डॉक्टर मोहता ने जो पॉइंट्स बताए वो बहुत सही पॉइंट्स हैं। यही कुछ बातें कि आपको बार बार उसकी याद आ रही है, उसके बिना आप बेचैन हो जाते हैं, उस पर जाते हैं तो सेल्फ कंट्रोल छूट जाता है, इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे आपको बहुत तकलीफ होती है। सोशल मीडिया के कारण किसी न किसी के साथ झगड़ा हो चुका है, या तो आपको डाइनिंग टेबल पे पत्नी डांट चुकी है, या आप अगर छोटे हैं तो आपके माता पिता ने आपको इस्तेमाल को जैसे कभी न कभी डांटा है, या कभी जैसे फ्लाइट आप प्लेन में से आ रहे हैं, फ्लाइट रुकते ही पहले मोबाइल ऑन करते हैं। तो जब आप रुकने के पहले सर, रुकने के पहले बिफोर ही सेज कि नाउ यू कैन कुछ दिल पिक्चर का गाना याद आ रहा है क्या? मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ मेरा मोबाइल खो गया। अजी मोबाइल सामने रहा तो भी नींद नहीं आती, डॉक्टर मोहता शायद बताएंगे बाद में, मोबाइल सामने रहा तो नींद उड़ जाती है रात को। भावे सर, मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहूंगी
जी हाँ। कि सोशल मीडिया का माता पिता यानी हमारे अभिभावक एवं रिश्तों पर कैसा असर पड़ता है, इसको आप थोड़ा विस्तृत करके हमें जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, डेफिनेटली। रिश्तों पे जो असर है उसमें ऐसा है कि एक तो अभिभावकों पर उनका भी कुछ उसके बारे में पहले 2 शब्द कहना चाहूंगा हाँ। कि जो मैंने पहले कहा था कि सोशल मीडिया से जो जो समस्याएं पैदा होती, मैंने कहा था, मैंने आज 12 गिनी थी। अब वो 12 की 12 अपने पेरेंट्स में भी हो सकती है, यानी माता पिता अगर सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी ये होने वाला है कि उनको भी ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पेरेंट्स सोशल मीडिया या सेलफोन या कोई भी डिवाइस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे बच्चों पे डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स स्टार्ट एक्टिंग एज बैड रोल मॉडल्स। अगर माता पिता सोशल मीडिया के इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो बच्चा भी ज्यादा करेगा। इस पे काफी रिसर्च हुआ है और रिसर्चर्स ने ये देखा है कि जिन घरों में माता पिता का सोशल मीडिया टाइम ज्यादा है, मान लीजिए रोज 3 घंटे 4 घंटे, तो बच्चों का उसके अनुपात में बाकी बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा। सो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग अच्छे रोल मॉडल बने, खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें। यहाँ तक कि हम तो पेरेंट्स को कई बार ये बताते हैं कि बच्चों के सामने सेल फोन तभी इस्तेमाल करो जब बहुत आवश्यक नहीं है तो उनके सामने मत करो। अब आपने एक मंजूषा जी एक अच्छा सवाल पूछा कि रिश्तों पे क्या असर पड़ता है सोशल मीडिया का। मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेट ज्यादा विस्तृत हो गया, पर सोशल मीडिया प्रॉपर अगर हम लोग देखते हैं तो रिश्तों पे अच्छा असर भी पड़ता है और गलत असर भी पड़ सकता है। अच्छा असर क्या पड़ता है? अच्छा असर ये पड़ता है कि एक तो जैसे मैंने पहले कहा था, कनेक्टेडनेस होती है, एक कनेक्शन बढ़ जाता है रिश्तों में। खासकर कोरोना के दिनों में जब खाली टाइम ज्यादा है तो हम किसी ऐसी बुआ को फोन कर लेंगे, किसी मौसा को फोन कर लेंगे जिससे बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। तो रिश्तों में थोड़ा नजदीकियां आ गई हैं। यानी सोशल मीडिया के पहले अब ट्रंक कॉल लगाना या किसी को चिट्ठी भेजना, उसमें वो नजदीकी नहीं थी, वो क्लोजनेस नहीं था, जो कि आजकल सोशल मीडिया से बढ़ गया है। दूसरा एक रिश्तों में एक फायदा मैंने ये देखा है कि ऐसी कई भावनाएं जो हम एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, सोशल मीडिया पे कर पाते हैं, और इससे कई बार फायदा होता है। जैसे मान लो मेरे हाथ से कोई गलती हो गई, अब ये मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं जाके उसके सामने माफी मांग लूं कि यार मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। होता है, कई लोगों से नहीं हो पाता है, लेकिन सोशल मीडिया एक उसके लिए अच्छा साधन है। अगर आपको टाइप कर दो कि यार आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट, प्लीज एक्सक्यूज मी, दिस वोंट हैपन अगेन, ये कर देना बहुत आसान है। उसमें आमने सामने मिलने का एम्बैरेसमेंट, ऑकवर्डनेस वो कुछ होता नहीं है। खैर, माफी मांगना तो एक बात हुई, लेकिन किसी को दिल से धन्यवाद देना है, किसी के दिल से तारीफ करनी है, तो सोशल मीडिया उसको बड़ा लुब्रिकेट करता है। यानी ये चीजें सोशल मीडिया में काफी आसान हो जाती हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल का अगर बुरा प्रभाव, यानी पहले तो मैंने बहुत सारे बुरे प्रभाव बताए, पर हम यहाँ रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, तो एक का मेंशन मैं पहले कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे, बाद में इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे शायद, कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने कहा, तनाव बढ़ जाते हैं। मेरा एक मित्र है, उसका किसी से भी झगड़ा हो गया तो वो फटाक से ग्रुप से निकल जाता है। इसको मैं एस्केपिस्ट टेंडेंसी कहूंगा, यानी आमने सामने सामना न करते हुए चीजों को सुलझाने के बजाय वहां से भाग चलो। कि थोड़ी भी सोशल मीडिया पे तू मैं हो गई तो एक एडजस्टमेंट करना, एकोमोडेट करना वो होता नहीं है, तो रिश्तों में दरार कई बार आ जाती है। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ये दरार महीनों महीने चलती रहती है। कभी 6 महीने पहले किसी ने कुछ कहा जो इसको थोड़ा बुरा लगा तो भाग गया, संबंध खत्म हो गया। तो ये एक होता है। और दूसरा मैंने देखा है कि परिवार रिश्ते अगर हैं तो परिवार में समस्याएं होती हैं। इसका जिक्र डॉक्टर मोहता पहले कर चुके हैं कि माता पिता और बच्चों में दरार कई बार बढ़ जाती है। अगर माता पिता ने शुरुआत से बच्चों का मीडिया हैंडलिंग सही ढंग से नहीं किया है तो दरार पड़ती है। बच्चों को डांट पड़ती है, कितनी देर मोबाइल पे बैठा है, पढ़ाई कब करेगा, वगैरह वगैरह। बच्चों को ऐसी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है माँ बाप से, हालांकि उसमें से अधिकतर सच होती है जो कि बच्चा सुनना नहीं चाहता है। तो यानी मोबाइल के जरिए संबंध, मैं बाद में चर्चा करूंगा कि संबंध कैसे सुधर सकते हैं, तो सुधरने के बजाय एक मोबाइल संबंध बिगड़ने का एक बहुत आम कारण हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे ही डॉक्टर्स ऐसी फैमिलीज को देखते हैं जहां माँ बाप बच्चों से खफा हैं, बच्चे माँ बाप से खफा हैं मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर। संबंधों में दोनों बातें हैं, यानी कुछ अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है
कि हमने कोई पोस्ट डाली और किसी ने लाइक नहीं किया तो बाद में पीछे से फोन करके डांटा भी जाता है, मैंने पोस्ट डाली थी और तुमने देखा तक नहीं। अरे कुछ पूछिए मत, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। मेरा एक दोस्त हमारे एक ग्रुप में कुछ एक कविता बना के डाल देता है, तो मैं उसके पर्सनल व्हाट्सएप पे डालता हूँ कि अरे यार बहुत इट वाज अ वंडरफुल पोएम, तो मुझे डालता है कि यार प्लीज पुट दैट ऑन द ग्रुप, यानी तारीफ मत कर, वहां तारीफ कर। यानी हमें कोई फॉलोअर की जरूरत है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस लोगों के दिमाग में जो होते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ जाते हैं बहुत यानी बार। मेरे खुद के साथ 2-3 बार हुआ कि किसी ने मेरे को फोन करके डांटा है कि तुम मैसेजेस देखती हो लेकिन कभी रिप्लाई नहीं करती हो करके। सो ये भी एक चीज होती है। और वास्तविक जीवन में और सोशल मीडिया पर दिमाग के इस्तेमाल में कुछ अंतर होता है क्या? ये मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छा सवाल है। यानी आम जिंदगी में हमारा दिमाग कैसे चलता है, तो जिस ढंग से चलता है, क्या साइबर स्पेस में सोशल मीडिया में वैसा ही चलता है? इसका उत्तर क्लियर कट नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि साइबर स्पेस में यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय हम किस किस ढंग से अलग बर्ताव करते हैं। एक ऐसा बर्ताव जो कि अपने स्वभाव का हिस्सा नहीं है। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे एक को हम लोग कहते हैं ऑनलाइन डिसइनहिबिशन। ऑनलाइन डिसइनहिबिशन यानी हम लोग जब ऑनलाइन जाते हैं तो अपने बर्ताव पे जो प्रतिबंध होते हैं, प्रोहिबिशंस होते हैं, टैबूज होते हैं, वो निकल जाते हैं। यानी अगर मुझे किसी को ऐसा कड़वा कमेंट जो मैं नॉर्मली करूंगा नहीं फेस टू फेस में, मैं इस पर कर डालूंगा, तो एक ढंग से आपका इनोवेशन कम हो गया। ठीक है। इसी तरह से ऑनलाइन एस्केलेशन। एस्केलेशन यानी एक आधी चीज ऊपर जाना, यानी थोड़ा सा किसी ने कड़वा सा कमेंट डाल दिया तो एक दूसरा गुस्सा हो गया, तो पहला और ज्यादा गुस्सा हुआ, दूसरा फिर और ज्यादा गुस्सा हो गया, तो थिंग्स गो ऑन एस्केलेटिंग। यानी प्रॉब्लम लिमिटेड रहने के बजाय जो कि डेली लाइफ में मल्टीप्लाई एडिटिव होता जाएगा, goes on adding, it keeps on snowballing and it keeps on worsening. इसी तरह से टाइम डिस्टॉर्शन इफेक्ट। अब आमतौर पे अगर मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक अंदाजा आ जाता है कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई कर ली, या मान लो मैं कुछ गाने सुन रहा हूँ तो एक अंदाजा आता है कि मैं शायद आधे घंटे से गाने सुन रहा हूँ। पर साइबर स्पेस में या सोशल मीडिया पे ये बात नहीं होती है। ऐसा बहुत इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ है कि जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे उनसे पूछा गया कि आप कितने घंटे इस्तेमाल करते हो, तो उन्होंने सिंसियरली बताया कि जी किसी ने कहा 1 घंटा, किसी ने कहा 1.5 घंटा। और जब उनका टाइमिंग प्लॉट किया गया तो ऐसा मालूम पड़ा कि इट वाज अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन। यानी जो 3 घंटा इस्तेमाल करता है उसको वास्तव में लगता है कि मैंने 1 ही घंटा किया है। टाइम एक ढंग से डिस्टॉर्ट हो जाता है। और ऐसे लोगों को खुद को आश्चर्य होता है जब उनका एक ऐप बताता है कि हाँ 3 घंटे से सोशल मीडिया पे हो, तो टाइम गेट्स डिस्टॉर्टेड। या फिर एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन यानी एक आधी ऐसी चीज जो कि सही नहीं है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे जब वो बार बार होता है तो इट टेंड्स टू गेट नॉर्मलाइज कि अरे यार ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता है। यानी फॉर एग्जांपल किसी की निंदा करना, मान लो एक के बारे में किसी ने बुरा कहा तो तीसरा भी बुरा कहेगा, चौथा भी बुरा कहेगा, तो नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इट बिकम्स नॉर्मलाइज क्योंकि ये तो इस पे चल ही रहा है इंटरनेट पे, तो ये एक समस्या वहां पे होती है। एक होता है ऑनलाइन सिंडिकेशन। सिंडिकेशन यानी है अपने सरीखे और लोगों को लेके ग्रुप बनाना। मुझे मेरी जैसी सोच वाले और लोग मिल गए, हमारा सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बन गया, बढ़ता गया। अब इसमें कई बार बहुत सारी गलत बातें होने लगती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे चाइल्ड सेक्स टूरिज्म। चाइल्ड सेक्स टूरिज्म यानी कई ऐसे एडल्ट्स जिनको बच्चों के साथ लैंगिक क्रिया करने में आनंद आता है, मान लो उनको थोड़ा भी अंदेशा लगा कि शायद ये सामने वाले व्यक्ति भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो उससे ऑब्लिकली कम्युनिकेट करेगा। जब हाँ हो जाएगा तो वो दोनों जानते हैं कि हम दोनों लाइक माइंडेड है, और इस ढंग से उनका ग्रुप बढ़ता जाता है। सो यू काइंड ऑफ फॉर्म ए सिंडिकेट ऑनलाइन, तो जिसका कई बार अच्छा भी हो सकता है। ऑनलाइन सिंडिकेशन पे अच्छे विचारों वाले लोग भी आ सकते हैं, पर कई बार इसका गलत असर होता है। वैसे ही एक है प्राइमेसी इफेक्ट। मान लीजिए कि मैं मान लो किशोर अवस्था का लड़का हूं या यंग मैन हूं, आज तो यंग मैन नहीं हूं, लेकिन नहीं सर आप यंग है। मंजूषा जी सच कहने के लिए जानी जाती हैं, तो ये मैं मान लेता हूँ। ये तो मान लो
मैं एज ए यंग पर्सन किसी लेडी को मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन यार थोड़ा जबान तीखी है, स्वभाव इसका ठीक नहीं है, वो कितनी निंदा करती है इसकी उसकी। तो जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो उसका पहरावा, उसका चेहरा, उसकी बोलचाल इससे फॉर्म होगा। लेकिन ऑनलाइन जाके देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइमेसी इफेक्ट, यानी आपको एक आधी ऐसी चीज दिख जाती है जो आपको पसंद आती है, एंड दैट मैग्निफाइज इटसेल्फ टू द नेग्लिजेंस ऑफ ऑल अदर एस्पेक्ट्स। मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जब मैंने देखा किसकी तरफ से आई है, तो इस सुंदर लड़की है। अब वो सुंदर लड़की का स्वभाव कैसा है, या वो बाकी लोगों के साथ बर्ताव कैसा करती है वगैरह वगैरह, ये इग्नोर हो जाएगा। पर केवल उसका चेहरा अच्छा है इसलिए मैं उसको फ्रेंड बना लूंगा, मैं उससे कम्युनिकेट करना शुरू कर दूंगा। तो ये कुछ उदाहरण है कि जो कि रियल लाइफ में होते नहीं है, लेकिन साइबर स्पेस में अपना दिमाग एक अलग ढंग से काम करने लग जाता है। यानी फेक आईडीज भी बनती है और वो फेक आईडीज को हम फॉलो करना भी शुरू कर देते हैं। जी हाँ जी, वो तो साइबर स्पेस में बहुत बहुत बड़ा एरिया है, और जो हम नहीं है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। सो और एक मैं कहना चाहूंगी इससे रिलेटेड, क्या इसका सेल्फ इमेज जो होती है हमारी, उससे कुछ लेना देना है क्या? सेल्फ इमेज के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है। अब सेल्फ इमेज यानी क्या होता है? सेल्फ इमेज को हिंदी मराठी में कहेंगे स्व प्रतिमा, यानी मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी अपने खुद के बारे में मन में क्या छवि है। और सेल्फ इमेज का महत्व ये है कि सेल्फ इमेज अपनी एक 16, 17, 18, 19 साल तक बन जाती है, और एक बार जो सेल्फ इमेज बन गई वो जन्म भर अपने साथ चिपकी रहती है। अगर मेरी सेल्फ इमेज है कि सुधीर भावे एक स्मार्ट आदमी है, तो मैं जो भी एक्शंस लूंगा वो स्मार्ट एक्शंस होंगे, कॉन्फिडेंट लूंगा। अगर 20वें साल में मुझे लगता है कि सुधीर भावे लल्लू है, तो फिर क्या होगा कि जिसे मराठी में बावळट कहेंगे, जन्मभर माझं वागणं बावळटासारखं राहील, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहेगा। अब सेल्फ इमेज बनती कहां से? सेल्फ इमेज बनती है कि बचपन में माता पिता अपने को अपने बारे में क्या बताते हैं, अपने काम की कितनी तारीफ करते हैं, अपने पे कितना विश्वास दिखाते हैं वगैरह वगैरह। अपने टीचर्स अपने को क्या फीडबैक देते हैं, और तीसरा अपने साथी, अपना मित्र परिवार, ये अपने को क्या फीडबैक देते हैं। अब सोशल मीडिया में जो मित्र परिवार है वो सेल्फ इमेज के साथ बहुत गड़बड़ कर सकता है। कल्पना करो कि एक 14 साल की लड़की अपना सोशल मीडिया पे एक फोटो डालती है, उसकी तारीफ आई है, काफी सारे लाइक्स आए हैं, एक कमेंट अगर आ जाता है कि तू पिछले जन्म में हाथी थी क्या, क्यों तेरे कान तो वैसे हाथी जैसे लग रहे हैं, बस 14 साल की उम्र में सेल्फ इमेज को चोट पहुंच जाती है। लड़की उसके बाद कई साल तक अपने कानों से प्री ऑक्युपाइड होती है, डाउन हो जाती है। मीडिया और सेल्फ इमेज, इसका मेरे ख्याल से सबसे एक अच्छा उदाहरण होगा सेल्फी एडिक्शन। खुद की सेल्फी लेना हम सब लोग देखते हैं, यानी बहुत ही अजीबोगरीब जगह पे, जहां वैसा आमतौर पे नहीं करते थे यंग लड़कियां, वैसा कुछ करके क्या बोलते हैं सर उसको, वो पिग के जैसा नहीं, पाउट ऐसा क्यों करते हैं मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा, शायद बाद में राजीव या मंजूषा बता पाए। पर अपना फोटो ले रहे हैं, और शायद कईयों को पता होगा कि ब्यूटी एप्स होती है, ब्यूटी ऐप आप अपने कैमरे पे डाउनलोड कर लो, अपना फोटो खिंचा दो, और आपका चेहरा आभूषित, गोरा, सुंदर होके एक अलग स्वरूप धारण करके निकलेगा। 10 साल छोटे दिखने लगते हैं सर उसमें। स्किन के सब रिंकल निकल जाते हैं, तुकतुकीत त्वचा हों जाते हैं, और फिर आप सोशल मीडिया पे डालते हो। अब ये हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी में कि आई हैव 2 सेल्व्स, यानी मेरा जो स्व है वो 2 हैं, एक तो रियल सेल्फ और एक है साइबर सेल्फ। तो ये जो मेरी सेल्फी क्रिएट कर रही है वो एक साइबर सेल्फ है, मेरा रियल सेल्फ उसमें कई अच्छाइयां हैं, कई दाग हैं, पर मेरा जो साइबर सेल्फ है इट हैज गॉट टू बी परफेक्ट। वो एक यूटोपियन चीज है कि मेरी जो छवि साइबर स्पेस में आएगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको बहुत सारे लाइक्स मिलने चाहिए। अब लाइक्स अगर आ गए तो ठीक है, आपकी सेल्फ एस्टीम कुछ हद तक बनी रहेगी। लाइक्स अगर नहीं आते हैं, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था, एक आधा नेगेटिव कमेंट आता है, तो उससे सेल्फ इमेज को काफी धक्का लगता है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर मोहता भी इस बात की जानकारी रखते हैं कि पूरी दुनिया में अनगिनत टीनेजर्स ने सुसाइड किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी का नेगेटिव कमेंट आ गया, एक बचपन में नई नई पनपती हुई सेल्फ इमेज को धक्का लग गया,
जीवन निरर्थक लगने लगा। ऐसे लगा कि मैं कभी भी अच्छी दिख नहीं पाऊंगी या कभी भी लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, और फांसी का फंदा लग गया। तो मेरे ख्याल से इसी के हाँ, इसी के साथ मैं मोहता सर से पूछना चाहूंगी कि सेल्फ एस्टीम के साथ क्या संबंध है? सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एस्टीम एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। बहुत अच्छी तरीके से बताया कि सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इमेज क्या होता है। सेल्फ एस्टीम सेल्फ इमेज से ही बना हुआ है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। एक पहलू है, तो जो सर ने बताया वही उसके साथ में चलेगा। आपका दूसरा जो पहलू है वो पहलू है कि अगर हम एग्जाम्पल से बात लेते हैं, सपोजिंग इंस्टाग्राम पे मैंने मेरा एक फोटो डाला, मैं एक 14 साल का लड़का हूं, और मैंने जैसे ही फोटो डाला कुछ सेकंड के अंदर नोटिफिकेशन आते बराबर मैंने वो मोबाइल साइड में रखा हुआ तुरंत उठाया और देखा कि क्या मुझे लाइक 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 मिलते चले गए, और मुझे वाव 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 की भूमिका आ गई। और वो वाव का जब मेरे अंदर आने लगा, अचानक एक डिसलाइक, दूसरा लाइक, तीसरा डिसलाइक। सर ने कहा हाथी के कान, किसी ने कहा अरे यार भैया कहाँ से आ गए तुम, कौन से मध्य प्रदेश में रहते हो, क्या जंगल में रहते हो, क्या आदिवासी जैसे दिखते हो। तो सडनली मेरा जो इमेज है, मेरा जो सेल्फ एस्टीम है वो हिल जाता है, और वो हिल के मुझे कहने लगता है कि क्या ये सही कह रहा है या वो सही कह रहा है, आई एम इन डाउट। और ये सेल्फ डाउट जिस दिन मेरे मन में आया, जिस समय मेरे मन में आया, मैं अपने आप को उस मुकाम पे ले जाता हूँ और कहता हूँ कि हाँ मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं, मेरी तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, मैं तो दिखता भी अच्छा नहीं हूँ, मुझे तो लोग भी पसंद नहीं करते, माँ भी डांटती, पिताजी भी डांटते, दादाजी दादी जी डांटते हैं, भाई बहन भी बात नहीं करते हैं, दोस्तों ने भी छोड़ दिया है, कोई ग्रुप पे लेना नहीं चाहता है। मेरी सारी बातें जो अच्छाइयां हैं वो भूल के मैं निगेटिव 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 कनोटेशंस में चला जाता हूँ, और सोचने लगता हूँ कि मुझ में कुछ नहीं बचा है, और मैं किसी लायक नहीं रहा, और मेरा कोई दोस्त नहीं बचा। 2 लोगों ने लाइक किया, और वो शायद 2 लोग जो है ना वो मेरे बहुत गहरे दोस्त होंगे, मुझे बुरा नहीं लगे इसलिए उन्होंने लाइक डाला होगा। Now I try to reason out for the likes also, कि whether the likes were right, and I try to say myself that no, I am good for nothing. यानी अगर हम सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम खत्म और मैं खत्म। यानी हमारा अगर सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है तो हमारी इमेज भी स्ट्रांग रहेगी, और हमें लाइक्स डिसलाइक्स से फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ज्यादा असर हमें नहीं आएगा। बिल्कुल बराबर। इसी के साथ इसको हमें बिल्ड करना पड़ता है मंजूषा, बिल्ड करना पड़ेगा, जो हम लाइफ स्किल से कर सकते हैं। हो सकता है हम आगे कोई प्रोग्राम्स ले और उसमें ये चीजें और डिटेल में डिस्कस करें। नहीं बिल्कुल। सर मोहता सर, मैं और कुछ जानना चाहूंगी कि हम सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर कैसा होता है, उसमें क्या आएगा? बिहेवियर का जब प्रॉब्लम आता है तो बिहेवियर ब्रेन से रिलेट होता है। अब यहाँ बात करते हैं, थोड़ी सी हार्मोन की बात कर देंगे, न्यूरोबायोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर। जी सर। हाँ। आपने अपने बच्चे को कहा जो पहली के अंदर पहला आया कि वाह बहुत अच्छा, क्या बात, क्या काम किया तूने, बहुत अच्छा, मैं तुझे प्राइज देने वाला हूँ। आपने उसको रिवॉर्ड दिया और वो बड़ा खुश हुआ। दूसरी की परीक्षा आई तब आपने कहा कि अगर तू पहला आया तो फिर प्राइज मिलेगा, फिर काम करने लगा। तीसरी की परीक्षा आई, आपने कहा कि अब तो बड़ा प्राइज दूंगा, चौथी में फिर प्राइज दूंगा। एंड ही गोज इनटू दैट सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम एंड रिवॉर्ड सिस्टम एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ही ड्रॉज हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट रिवॉर्ड। जहां उसे पहला नंबर आएगा, आपने एक लालच दिया, एक रिवॉर्ड दिया, और वो सिस्टम बन गई कि रिवॉर्ड मिला तो खुशी मिली, रिवॉर्ड मिला तो खुशी मिली। प्राइज मिलने की, पहला नंबर आने की शायद खुशी थी कि नहीं थी मालूम नहीं, पर प्राइज मिलने की खुशी जरूर थी, और रिवॉर्ड मिलने की खुशी थी, पीठ पे थपकी लगने की खुशी थी। तो ये खुशियां हमारे मन में इस तरीके से जैसे आती हैं, वैसे ही खुशियां जब हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उस खुशियां उसमें से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे वो मैं जो कुछ करूं उसमें मुझे रिकॉग्निशन मिले, और रिकॉग्निशन मिलते बराबर मेरा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होने लगता है, और ब्रेन के अंदर में एक हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसका नाम है डोपामीन। ये हैप्पीनेस हार्मोन जैसा जैसा रिलीज होगा मुझे खुशी मिलती रहेगी, पर ये हैप्पीनेस हार्मोन का कांस्टेंट सोर्स ब्रेन नहीं हो सकता। और कांस्टेंट सोर्स के लिए मुझे कांस्टेंट एनकरेजमेंट चाहिए, बार बार मुझे लाइक मिलनी चाहिए, 1 2 3 50 100 200 500 1000 5000।
पूछते हैं हम स्कूल में जब जाते हैं प्रोग्राम लेते हैं, हम सब जाते हैं, सारे लोग हम एडोलेसेंट प्रोग्राम लेते हैं, अर्चना भी है, सुधीर भावे सर भी हैं, तो हम पूछते हैं तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो कोई हाथ ऊपर करता है 200, 500, 1000, 2000 दोस्त हैं। वर्चुअली इतने सारे दोस्त होते हैं, जानते कितने को हो तो 2, 4, 5, 6। अगर मैं अडल्ट से ये पूछूं, जहां यहाँ इस प्रोग्राम में मुझे 103 लोग दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे अडल्ट होंगे, इनमें से पूछूं कि आपके पास में एक गहरा दोस्त है क्या, जिसे आप रात में 2 बजे फोन करके बोल सकते हैं कि भैया तुरंत आ। आपका फोन रात में 2 बजे उसने उठाना चाहिए और आपकी बात उसने माननी चाहिए, चाहे आप पैसे मांगे, चाहे आप काम बताएं, चाहे इमरजेंसी हो, वो आपके पास अगर दोस्त है तो आपका सही दोस्त है। और यही दोस्त हमें रियलिटी में बनाने हैं। अर्चना ने जैसे, मंजू ने जैसे कहा और सुधीर भावे सर ने कहा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है। REAL और REEL का डिफरेंस है यहाँ पर। दोस्तों, हमें दोस्त बनाने हैं जो रियल लाइफ के हैं और ना कि रियल लाइफ के। अगर हमारे ब्रेन को ये डोपामिन मिलता रहा तो हम खुश होंगे, और डोपामिन नहीं मिला तो हम एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये बड़ों के साथ में कम होता है, बच्चों के साथ में जाता होता है, पर अभी तो बड़ों के साथ में भी हो रहा है, क्योंकि हम सब बंद चुके हैं एक छत के अंदर में, जहां हमारे पास में एंटरटेनमेंट का कोई चैनल नहीं है। हमारे पास में बंधे हुए लोग, वही 4 लोग, वही 4 चेहरे, उदास चेहरे, थके हुए चेहरे, खाती हुई दवाइयाँ, और निगेटिविटी सब तरफ से हमें खा रही है। इस समय हमें क्या चीज ढूंढनी चाहिए जो हमें हैप्पीनेस दे और ना कि एक डोपामिन सर्ज लाए। हैप्पीनेस हार्मोन होता है सीरोटोनिन हार्मोन। मैं बहुत थियरी बात कर रहा हूं, पर आप याद रहे, मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट के लिए समय है मंजू मेरे पास में? हाँ हाँ, तो बढ़िया। सीरोटोनिन और डोपामिन ये 2 हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन है जो हमें रिवॉर्ड पाथवे से मिल रहा है, और एक सीरोटोनिन हार्मोन है जो हमें हैप्पीनेस से मिल रहा है। हैप्पीनेस कहाँ से आया, प्लेजर कहाँ से आया? प्लेजर हमें जो टेम्पररी प्लेजर है वो प्लेजर नहीं है, हम परमानेंट प्लेजर की बात करें। परमानेंट प्लेजर होता है क्या? नहीं, परमानेंट प्लेजर नहीं होता। एक जो ज्यादा लॉन्ग टर्म हो और ज्यादा अलग तरीके से आया हो। डोपामिन हमारे शरीर में मिड ब्रेन से रिलीज होता है, और वो ज्यादा करके इमोशनल आउटब्रेक के साथ में काम करता है। जब हम फ्लाइट और फाइट की डिस्कशन करते हैं, जहाँ कहते हैं कि बच्चों के या तो दुश्मन होते हैं या दोस्त होते हैं, बीच वाला कोई नहीं होता, या तो मार डालूंगा या मर जाऊंगा। ये दो ही भूमिका में एडोलेसेंट, टीनेज और यूथ जीते हैं। अडल्ट में वो मैच्योरिटी आने के बाद में, उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करने के बाद में थोड़ा सा चेंज आता है। और सीरोटोनिन क्या होता है? सीरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन है। ये हमारे शेयरिंग के साथ में बढ़ता है, केयरिंग के साथ में बढ़ता है, एम्पैथी के साथ में आता है, न कि दया माया के साथ में, और ना कि किसी को हमने कुछ टेम्पररी कुछ कहा, उसने कुछ कहा और हम खुश हो गए। ये एक एग्जांपल आपसे देना चाहूंगा कि आपको सोशल मीडिया पे 100 लाइक मिले और आप खुश हुए, आपका डोपामिन रिलीज हुआ, रिवॉर्ड पाथवे ने आपको वाह 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 कहा, आपने पीठ पे थपकी लगाई और अपने आप में बहुत खुश हुए, अपने आप में खुश हुए। उन 100 लोगों ने क्या कहा उनको मालूम भी नहीं है, कहा करके भूल गए, पर अपने आप में खुश हुए। पर यही चीज, आपने कोई काम अच्छा किया, आपने किसी अनाथ आश्रम में जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, किसी को, व्यक्ति को जो जिसको मदद की जरूरत थी उससे मदद करी, एक ग्रुप में एक्टिविटी शुरू करी, आपने एक एनजीओ शुरू किया, एनजीओ के साथ में काम करना शुरू किया, एक शेयरिंग और केयरिंग का एटीट्यूड आप में आया, और आपने किसी तरीके से घर में रहते हुए भी किसी को जो कर सकते थे वो मदद करी। आपने टेक्निकल शेयर किया, आपने चीजें शेयर करी, आपने बातें शेयर करी, आपने अपना केयर शेयर किया, आपने उनको दवाइयां भेजी, आपने जो शेयर किया, इसके साथ में आपके बॉडी में जो रिलीज होगा वो सीरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होगा। और सीरोटोनिन आपका परमानेंट प्लेजर आपको ड्रॉ करेगा, लॉन्ग टर्म प्लेजर आपको देगा, ना कि टेम्पररी जो कुछ देर के लिए आए और अपने आप खो जाए। फिर से आप मोबाइल पे जाएं और फिर से एक चीज रिवॉर्ड पाने की कोशिश करें। तो ये साइकिल जो है, ये साइकिल हमें एडिक्ट बनाती है, जो डोपामीन और रिवॉर्ड पाथवे में जाती है। अगर ये बहुत सारे रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं कि जितना नशा शराब का है, जितना नशा ड्रग्स का है, उससे ज्यादा उससे भी ज्यादा नशा जो है वो सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट और ये गैजेट्स का है, जिसमें से साइकियाट्रिस्ट लोग हमको नहीं निकाल पा रहे हैं, हम तो बहुत दूर की बात है।
हम पहले कहते थे काउंसलिंग से काम हो जाएगा, भैया मोबाइल का मुंह मत यूज कर यार, तेरी पढ़ाई कम हो जाएगी, तू पढ़ाई कम करेगा तो मार्क कम मिलेंगे, जाने दे, छोड़ दे मोबाइल को, रख दे बाजू में। इतना आसान अगर होता तो शायद हर एक ने मोबाइल साइड में रख दिया होता। जब हमारे समझ में आया, जब DSM-5 के अंदर क्राइटेरिया इंक्लूड हुआ और उसमें कहा गया कि भैया ये हमसे काम नहीं होने वाला, ये पीडियाट्रिशियन का और काउंसलर का और साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है, ये साइकियाट्रिस्ट का काम है, और ये साइकियाट्रिस्ट ही इस चीज को हैंडल कर पाएगा जब एडिक्शन आएगा। और एडिक्शन बहुत बुरी तरह हमारे समाज में, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, और नंबर आप देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। जैसा भावे सर ने कहा, होमवर्क करिए, घर पे जाके ढूंढिए कितने एडिक्ट हैं दुनिया में, कितने एडिक्ट हैं इंडिया में, चाहे वो मोबाइल के हो, सोशल मीडिया के हो, इंटरनेट के हो, फेसबुक के हो, इंस्टाग्राम के हो। आप ढूंढिए और आप भौचक्के रह जाएंगे उन चीजों के साथ में जान के कि बाप रे इतने सारे, क्या मैं उसमें से एक हूँ? ये प्रश्न पूछिए। मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल प्रश्न है, एक इंसाइट देना चाहूंगा आप लोगों को। हम बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, बहुत सारे वेबिनार सुन रहे हैं, बहुत सारे बाबा जी लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे गुरुओं को सुनते हैं, और सुनने के बाद कहते हैं वाह क्या लेक्चर हुआ, क्या बढ़िया बोले, इतना सुंदर कहा भावे सर ने, तो इतने अच्छे पॉइंट पुट अप किए कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। डॉक्टर मोहता ने और मंजूषा ने इतने अच्छे एग्जाम्पल शेयर किए, लगता है शायद मैं उसमें भी एक हूं। अब मैं कुछ करूंगा जरूर। आपने करूंगा जरूर कहा, 2 दिन याद रहा, प्लानिंग स्टेज में गए और इम्प्लीमेंटेशन 0। आप भूल गए क्योंकि लेक्चर अच्छा था, वेबिनार अच्छा था, आपने बहुत कुछ सुना। आपने सुना, आप में से कितने लोगों ने खुद के लिए प्रश्न किया? आज घर जाके प्रश्न करिए, अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं कौन से फेज में हूं, मैं कितना मोबाइल देखता हूं, मैं कितना सोशल मीडिया देखता हूं, मैं कितनी देर उस पर जा रहा हूं, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अगर मेरे बच्चे मुझसे कह रहे हैं मम्मा मोबाइल दे दो, तो मैं क्या देने में इच्छुक हूं? बच्चे का जैसे ही क्लास खत्म हुआ, मैंने मोबाइल छीन लिया उसके हाथ से, 1 सेकंड, वो 3 घंटे के लिए मोबाइल ले गया था क्लास के लिए। मुझे लगा कि बाप रे मैंने क्या क्या मिस कर दिया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 3 घंटे के लिए बच्चे ने मोबाइल अपना पढ़ाई के लिए लिया था भाई, और आप घबरा गए कि 3 घंटे के अंदर मैंने क्या क्या मिस कर दिया। तो ये सारी भावनाएं, भूमिकाओं में से दोस्तों, अडल्ट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, प्लीज ध्यान रखिए कि आप कौन सी जगह पे हैं। आप अपने आप से प्रश्न करिए, एम आई एन एडिक्ट, एम आई हैबिचुअल टू दीज थिंग्स, कैन आई कम आउट ऑफ दिस, हाउ शुड आई कम आउट ऑफ दैट। एंड ये 4 प्रश्न आपने जिस दिन पूछ लिए अपने आप से, शायद आप निकल पाएंगे। आज के इस वेबिनार को हम 0 मानेंगे अगर आपने अपने आप से प्रश्न नहीं पूछा। सुन के अनसुना हो जाता है, प्लानिंग स्टेज पे आके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ये सारी दुनिया में आपकी उम्र तक और हमारी उम्र तक हमने सबने देख लिया है और समझ लिया है। तो प्लीज समझिए और लाभ लाने की कोशिश करिए। मेरे ख्याल से मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर मोहता ने बहुत अच्छी बात कही कि दिमाग अपने को बहुत बातें पसंद आती हैं, लगता है बस कल से इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। अब ये बहुत ही आम बात आई है, केवल सामने जो श्रोता है या पेशेंट है उनकी बात नहीं है, ये हमारी भी बात है। कई बार सोचते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें ये अपन करना चाहिए। मेरी यहाँ पर राय ये है कि अपने को खुद को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा अंदर में झांक के देखना पड़ेगा कि मैं ये करने के बीच कोई तो भी चीज आड़े आ रही है, और वो चीज क्या है उसको पहचानना। अगर हम थोड़ा ध्यान देते हैं तो हम पहचान पाएंगे कि अगर मैं सोशल मीडिया को छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं तय तो कर लिया था सब भाषणबाजी सुन के करूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो क्या है जो बीच में आ रहा है, उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब वो क्या है जो बीच में आ रहा है, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग चीजें रहेंगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इस दिशा में सोचे बिना वो इम्प्लीमेंट करना संभव है। बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा हम अपना डेली कैलेंडर बना देते हैं कि इतना घंटा, जैसे बच्चों के लिए टाइम टेबल होता है, वैसे शायद हमें भी अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बहुत बार एक्सक्यूज ये आता है कि हम मेडिकल प्रोफेशन में है, इमरजेंसी होती है, या हमारी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, या हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो जिसको इमरजेंसी है वो व्हाट्सएप वगैरह करेगा, साथ में फोन भी कर देगा कि मैंने ये भेजा है तुम देख लो, ना कि हम कंटिन्यूअस चेक करते रहे और वो चेक करने के चक्कर में हम हर बार अपना आधा आधा घंटा उसमें बर्बाद करें। ये भी हम कर सकते हैं। मोहता सर, मैं कुछ और भी पूछना चाहूंगी आपसे कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारी सेहत पर कैसा असर पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा विस्तृत शारीरिक और मानसिक में अगर हमें करके बता देंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी हमारे दर्शकों के लिए। ओके, देखिए इसको बहुत
देर से हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, पर मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। परीक्षा जब रिवीजन करते हैं तो हमें याद रहता है कि क्या हुआ है, तो रिवीजन करना चाहूंगा। सबसे पहले हम जब किसी चीज का अति उपयोग करते हैं तो हमारे शारीरिक रूप में कैसे उस पर परिणाम आते हैं और फिर मानसिक रूप में क्या बदलाव आते हैं। तो शारीरिक रूप में अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहले जब हम किसी चीज का बहुत उपयोग करते हैं, मोबाइल को हम रेगुलर यूज करते हैं, तो हमारी उंगलियों के जो टेंडन हैं ये दर्द करने लगेंगे, उंगलियां दर्द करने लगेंगी। आपका जो रिस्ट है यहाँ पे एक बैंड होता है जिसे कार्पल टनल कहते हैं, इस कार्पल टनल पे सूजन आना शुरू हो जाती है और इतना दर्द होता है कि हम हाथ से हमारे खाने का चम्मच भी नहीं उठा सकते हैं। आप खाना पकाते पकाते आपको स्टर करना है तो आप वो भगोने के अंदर चम्मच भी नहीं घुमा सकते हैं। आप हाथ जो है वो वजन संभालने में या उठाने में असमर्थ हो जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। हमारी आंखों के अंदर रोशनी में परेशानी आती है, हमारी आंखें जो हैं कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, हमारी आंखें थकने लगती हैं। आप लोगों में से कितने लोग मैं ये फिर से पूछना चाहूंगा कि कितनी देर आप मोबाइल देखते हैं, और कितने लोगों को वो मोबाइल आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा देखने के बाद में बहुत एनर्जी आती है, वाह यार 1.5 घंटे के बाद में वाह कितनी एनर्जी आ गई मुझे, 2 घंटे के बाद में वाह कितनी एनर्जी आ गई मुझे, वाह आई फील एनर्जेटिक। किसी को नहीं होता होगा। बिल्कुल मंजू, तूने सही कहा कि हमें घंटा 2 घंटा यूज करने के बाद में, मोबाइल का यूज करने के बाद में, सोशल मीडिया का यूज करने के बाद में हम थक जाते हैं। दिमाग थकता है, आंखें थकती है, शरीर थकता है, हाथ थकते हैं, सारी सिस्टम जो है शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। थोड़ी देर के लिए वो शांत रहना चाहती है, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो बॉडी हो। और इस सिस्टम के अंदर में हमारा शरीर एनर्जेटिक की जगह थक जाता है, तो थकान हमारे बीच में आती है और इस थकान को हमें निकालने के तरीके ढूंढने होंगे। और उसके साथ में हमें लैक ऑफ स्लीप, भावे सर बार बार कह रहे थे कि स्लीप स्लीप स्लीप। स्लीप के 2 हार्मोन होते हैं, एक लेप्टिन और ग्रेनिन, और ये दोनों हार्मोन जो हैं ये हमारे शरीर में जब तक नहीं आएंगे तब तक हम सो नहीं पाएंगे। आएंगे कब? जब हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत होगा, आंखें बंद होगी, अंधेरा होगा और हम वो माहौल बनाएंगे दिमाग में और आजू बाजू में कि हाँ भाई अभी सोने का समय हो गया है और मुझे सोना है। अगर आप मोबाइल साइड में लेके बैठे हुए हैं जहां जिसकी बत्ती जल रही है बीच बीच में, जहां पे आपके उसके वो नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, टिंग टिंग बजता जा रहा है, कहीं पे तो भी कुछ न कुछ आपको आधी नींद के अंदर दिख रहा है। एडोलेसेंट और टीनेजर रात में 1, 2, 3, 4 बजे तक मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। उसमें से वो ब्लू लाइट और ब्लू रेज जो आ रहे हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं और हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है और नींद उचड़ जाती है, नींद नहीं आती। तो स्लीप अगर है तो स्लीप पैटर्न में, स्लीप मोड में लाने के लिए जैसा मंजूषा ने कहा एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है, और टाइम टेबल के साथ में हमें अपने मोबाइल का, सोशल मीडिया का यूज जो है रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना होगा जो मुकाम हमें कहेगा कि चलो भाई अब सोने का समय हो गया है। आपको शुरुआत में कुछ दिनों तक परेशानी होगी, एडोलेसेंट में बहुत परेशानी होती है। सर छत की तरफ देखते रहते हैं, सर लाइट बंद कर देते हैं पर आंखें बंद करने के बावजूद अंधेरा नहीं आता है। हम कहीं भी देखते रहते हैं पर नींद घंटा 2 घंटा नहीं आती है, तो फिर मोबाइल उठा लेते हैं। हमें ऑडियो चलाना पड़ता है, हमें वीडियो चलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें एक एंटेंगलमेंट, अटैचमेंट की जरूरत है। जब तक वो हमारा नहीं चालू होगा हमें नींद नहीं आएगी, बिकॉज वी हैव बिकम हैबिचुअल टू दैट। इस हैबिट को तोड़ने के लिए, इस एडिक्शन को तोड़ने के लिए कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों। चाहे वो एडोलेसेंट हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे वो दूध पीता हुआ बच्चा हो। हम देखते हैं हमारे क्लिनिक के अंदर में मदर जो वैक्सीनेशन के लिए आती है, आपसे बहुत सारे लोग, आप लोग लाते होंगे बच्चे को, वो 6 महीने का बच्चा होता है जो नहीं जानता है भी क्या होने वाला है, पर वो बच्चे के माँ बाप जो हैं वो पैनिक रिएक्शन में आ जाते हैं। अरे 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 डॉक्टर साहब रुकिए 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 रुकिए। सबसे पहले वो यूट्यूब शुरू होगा और एक उसके ऊपर गाना बजना शुरू होगा। वो गाना बच्चे के आंखों के सामने पकड़ेंगे और लगाएंगे, अब लगाइए डॉक्टर साहब इंजेक्शन। ये 1.5 महीने से शुरू होता है दोस्तों। मैंने 6 महीने का एग्जाम्पल दिया। 1.5 महीने बच्चे को कुछ दिखता भी नहीं है, अभी विजन पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, अभी कलर डिस्टिंग्विश करते नहीं आता, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है सिर्फ उसे, वो भी ब्लॉक दिखते हैं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, पर उस समय से शुरू हो जाता है क्योंकि पेरेंटल रिएक्शन इज द रिएक्शन व्हिच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन द चाइल्ड। आप किचन में काम करने के लिए बच्चे को छोड़ देते हैं टीवी के सामने, बच्चा उल्टा सोता है और यूं उल्टा घूम के मोबाइल देखता है, टीवी देखता है। टीवी का चैनल शुरू हुआ है, उसे पता है मैं घूमूं कैसे। आप बड़े खुश होते हैं, बच्चा 4 महीने में डॉक्टर साहब घूम गया, पूरा उल्टा होकर टीवी देखने लगा।
डेवलपमेंट की एक स्टेज आ गई, डेवलपमेंट की स्टेज नहीं आई, टीवी देखने की स्टेज आई, इसलिए उसने अपने टीवी देखने के डेवलपमेंट की अडेप्शन था उसका, अडेप्टेशन था उस चीज का, उसके लिए 3 महीने का बच्चा पलट के मोबाइल देखने लगा। ये वाकयात हम रोज देखते हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और इन चीजों के साथ में ये फिजिकल चेंजेस जो हैं ये बहुत बुरे होते हैं। एग्जॉशन, फटीक, लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हम ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज टाइम 0 हो गया है, हम ओबीज होते जा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, मोटापे के साथ में आने वाली बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, ये सारी चीजें, हाइपरटेंशन, ये हार्ट डिसीज, ये सारी चीजें आने लगी है हमें। इसके साथ में हमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है ये भी समझ में नहीं आता है। भावे सर इस पे हाईलाइट करेंगे कंफ्यूजन पे, और मेंटल चेंजेस जो आएंगे उसके ऊपर बताएंगे सर कि क्या आते हैं। पर एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, निगेटिविटी ऑफ लाइफ, निगेटिविटी ऑफ फ्रेंड्स, निगेटिविटी अबाउट एनीथिंग, एंड जनरलाइजेशन ऑफ टेंडेंसी। बच्चे को लाया जाता है और कहते हैं कि ये बच्चा होशियार नहीं है। बच्चा कहता है मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ, नालायक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ मालूम नहीं है। जब आप उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो पता है मैथ्स में 100 में से 80 मिले, फिजिक्स में 100 में से 85 मिले, बायोलॉजी के अंदर में 100 में से 88 मिले, और बच्चा कहता है मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है। जब डिटेल समझ में आता है, पूछते हैं तो कहता है कि मुझे संस्कृत समझ में नहीं आता सर। एक संस्कृत समझ में नहीं आता है, एक लैंग्वेज समझ में नहीं आती, एंड ही जनरलाइजेस एंड टेल्स हिमसेल्फ, इवन द पेरेंट्स जनरलाइज एंड से एंड कि ये तो बुद्धू है सर, इसका कुछ नहीं हो सकता, देखिए आप क्या कर सकते हैं। बच्चा कहता है मैं तो बुद्धू हूँ सर। जब उससे डिटेल में एनालाइज करते हैं तब समझ में आता है कि फिजिकल और मेंटल चेंजेस हमारी वजह से भी आ रहे हैं, और ये चेंजेस जो हैं ये डिट्रीमेंटल चेंजेस हैं जो निगेटिविटी हमारे मन में लाने की कोशिश कर सकते हैं, और निगेटिविटी आती है। तो इसका क्या करें ये हमारे समझ में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। सर मेंटल चेंजेस के बारे में बताएं। मैंने फिजिकल चेंजेस, फिजिकल एलिमेंट और इसी से कनेक्टेड मैं भावे सर से और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि किस उम्र में हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए? इसका तो वो भी मुझे जानना है। अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल और साइंटिफिक उत्तर दूं तो ये शायद कई लोगों को बचेगा नहीं। मेरी राय है 18 साल। आई एग्री। हाँ, डॉक्टर मोहता ने थोड़ी देर पहले फ्रंटल लोब के बारे में चर्चा की थी। क्या होता है दोस्तों कि अपने ब्रेन के अंदर वाले हिस्से में एक लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम होती है जो कि अपने भावनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। लिम्बिक सिस्टम बचपन से ही उसकी डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है। तो जो भावनाएं हैं बिल्कुल बचपन में गुस्सा आना, रोना, फ्रस्ट्रेटेड होना, बाद में ईर्ष्या, जलन वगैरह वगैरह ऐड होते जाते हैं। तो हम भावनाओं का अनुभव बचपन से लेते हैं। पर ब्रेन का वो हिस्सा जो कि निर्णय लेता है, सही गलत में परखने में सक्षम होता है, वो होता है प्री फ्रंटल लोब, अपने सामने का हिस्सा। अब एक समस्या ये हो जाती है कि लिम्बिक सिस्टम तो बचपन से अपने साथ है, पर प्री फ्रंटल लोब जो है, जो कि निर्णय क्षमता रखता है, द सेंस ऑफ द राइट एंड द रॉन्ग, ये 20 साल के बाद में जाके पूरा डेवलप होता है, 21, 22, 23, 24 साल में। कल्पना करें कि एक 16 वर्ष का एडोलसेंट वो सोशल मीडिया से आने वाले आनंद को, उस ग्रेटिफिकेशन को वो तो प्राप्त करता रहेगा, पर ये निर्णय कि मैंने ये उसका रिप्लाई देना चाहिए कि नहीं, मैंने ये साइबर बुलिंग पोस्ट डालना है कि नहीं डालना है, इसको मैंने किस ढंग से लेना है, मैंने कैसे रिएक्ट करना है, वो फ्रंटल लोब डेवलप नहीं हुआ। तो ये बड़ी समस्या होती है कि ये थोड़ा डिस्पैरिटी हो जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट एंड जिसको हम कहेंगे कॉग्निटिव या डिसीजनल डेवलपमेंट। अब मैं 18 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 18 साल यानी एक किशोरावस्था और बालिग अवस्था, इसके एक बीच का पीरियड है। अब ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 18 साल इंप्लीमेंट करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जिन जिन लोगों के बच्चे 16, 17, 17.5 साल के हैं, वो जानते हैं कि बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखना बहुत मुश्किल है। तो एक मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, मैंने मंजूषा जी को बताया था कि नेशनल रिकमेंडेशंस मैंने बनाए हैं, स्क्रीन आपने बनाए हैं सर। तो उसको मैं 16 तक लाया हूँ। लेट अस बी प्रैग्मेटिक, लेट अस बी रियलिस्टिक, क्योंकि भले आइडियल मेरे हिसाब से 18 है, लेकिन ना वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो एक मेरे ख्याल से वाया मीडिया समथिंग व्हिच इज जो ज्यादा यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है, वो 16 मान के चलते हैं। और ये मेरा पक्का मानना है कि 16 साल के पहले किसी भी बच्चे के पास ऐसा स्मार्टफोन न रहे,
कि जिससे सोशल मीडिया को कनेक्ट हो सके। एटलीस्ट खुद का तो भी नहीं होना चाहिए। हाँ। इनकेस अभी मैं आगे आऊंगी कि कोरोना में हमारे क्या चेंजेस आए हैं। सर भावे सर, मैं और एक आपसे पूछना चाहूंगी कि आप माता पिता तथा टीचर्स, क्योंकि इस सेमिनार में बहुत सारे टीचर्स भी अटेंड कर रहे हैं जिन्होंने आगे चल के अपने स्कूल में आने वाले बच्चों के पेरेंट्स को सूचनाएं देनी है, तो मैं उनको उनके संदर्भ में आप क्या सूचनाएं देना चाहोगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव से बच सके और वो सक्षम हो सके? मेरे ख्याल से आपने मंजूषा जी जितने सवाल आज पूछे हैं सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया की अच्छाइयां हमने शुरुआत में देखी, पर ये भी देखा कि सोशल मीडिया की समस्याएं ज्यादा हैं। अब अपना बच्चा सोशल मीडिया से ग्रसित ना हो, अफेक्ट ना हो, इसके लिए माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। बैकग्राउंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल शुरुआत से ही, यानी बच्चा पैदा हुआ कुछ महीने का है, तभी से माता पिता और बच्चे के बीच में एक अच्छा पॉजिटिव संवाद होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से डॉक्टर मोहता को भी अनुभव होगा कि लोग 15 साल की बच्ची को लाते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत बिगड़ी हुई है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है, वैसा करती है, वैसा करती है, हमारा बिल्कुल सुनती नहीं है। बिल्कुल। अब 15 साल की बिगड़ी हुई लड़की को ठीक करना ये लगभग असंभव है, क्योंकि सारा हो सकता है सारा गलत पेरेंटिंग जो 15 साल बच्ची ने झेला है उसको अंडू करना और उसको वापस ले जाके उसको सही रास्ते पे लाना, डिफिकल्ट है। ये बड़ा मुश्किल है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट। तो शुरुआत से ही संवाद आपका बच्चे के साथ ओपन रहे, खुला रहे, बच्चे को भी एक रिस्पेक्ट दिया जाए, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाए। इस तरह का जहां संवाद होगा ना, तो वहां माँ बाप को सही रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फर्टाइल ग्राउंड मिलेगा, ये संभव हो पाएगा। अब आपने पूछा कि माता पिता के लिए क्या सुझाव है, तो कुछ सुझाव यहाँ बताना चाहूंगा, सारे बताना मुश्किल है इस फोरम में। एक तो यह है कि सोशल मीडिया एकदम बुरी चीज है ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना है, कि माता पिता कई बार ये गलती करते हैं कि सेलफोन बहुत बुरी चीज है, ये इंटरनेट बहुत बुरी चीज है, ऐसा बिल्कुल न करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि नो टेक्नोलॉजी इज बैड, इट इज हाउ इट इज यूज्ड दैट इज क्रूशियल, दैट इज अ मूड पॉइंट। तो सोशल मीडिया खराब है, सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया है जनरेशंस को वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें ना करें, बल्कि इसकी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल क्या होगा और गलत इस्तेमाल क्या होगा, थोड़ा इस दिशा में चर्चा। जो भी अपने बच्चे के लिए रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम ग्राउंड रूल्स कहते हैं, तो ग्राउंड रूल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, रियलिस्टिक यानी बिल्कुल आइडियल, कि बिल्कुल बच्चे ने ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा लेकर ना चले, बल्कि आज के जमाने में जो संभव है वो लेके चले। जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल से आइडियल सोशल मीडिया एज 18 के ऊपर है, पर एक रियलिस्टिक ग्राउंड रूल है कि उसको 16 तक ले आओ ताकि इम्प्लीमेंटेबल हो जाए। तो ग्राउंड रूल्स बनाए घर में जो कि रियलिस्टिक हो। अब ग्राउंड रूल्स ने कैसे, एक हो सकता है कि बच्चा कितनी देर रोज इसका इस्तेमाल करेगा सेलफोन का। अब ये ध्यान रहे हमेशा कि बच्चों पे कोई भी बात अगर इम्पोज की जाती है कि तूने ऐसे ही करना है, तो उस बात का पालन किया जाएगा, इसकी संभावना कम होती है। लेकिन जहां चर्चा के द्वारा यू अराइव एट ए कंसेंसस, तो वहां उसका पालन ज्यादा होगा। आप बच्चे को पूछो कि बच्चा बेटा तुम कितनी देर रोज सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहते हैं। मान लो 17 साल का बच्चा है और वो कहते मम्मी मैं 2 घंटा करना चाहूंगा, तो उसको नेगोशिएट करें, उसको मतलब बेटा 1 घंटे पे ले चलेगा क्या। तो ऐसा वो संवाद के जरिए फिक्स हो, न कि कोई भी ग्राउंड रूल अपने डायरेक्टली इंपोज करना है। कुछ नियम ये होते हैं कि समटाइम्स आर सैक्रोसैंक्ट, यानी कुछ कुछ समय पवित्र होते हैं। जैसे खाना खाते समय मोबाइल बंद रहेगा, होमवर्क करते समय मोबाइल बंद रहेगा, जैसा डॉक्टर मोहता ने कहा सोने के पहले मोबाइल बंद रहेगा। मैंने जो रिकमेंडेशंस बनाए हैं उसमें मैंने लिखा है कि सोने के कम से कम 1 घंटा पहले, 1 आवर, ऑल डिवाइसेस शुड बी ऑफ, वाइब्रेशन मोड भी नहीं, दे शुड बी कंप्लीटली ऑफ एंड दे शुड बी आउटसाइड द बेडरूम कंप्लीटली। तो सम टाइम्स एंड सम स्पेसेस नीड टू बी मीडिया फ्री, यानी वहां अपने बच्चे ने मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी प्रमोट करना जरूरी है। डॉक्टर मोहता ने कुछ कुछ शारीरिक दुष्परिणाम बताए, उसमें मोटापा वगैरह वगैरह बताया। तो डेली जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, डेली कम से कम 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस पे जाओगे अबाउट सीडेंटरी बिहेवियर एंड एक्टिव बिहेवियर इन चाइल्डहुड, तो आप देखेंगे कि जो जागतिक स्वास्थ्य
संस्था है, उनका भी कहना है कि कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स, आउटडोर प्ले हर बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ और कुछ बातें हैं कि बच्चा जो भी एप्स वगैरह डाउनलोड करता है, तो बच्चे के साथ ये थोड़ा एक संवाद आपका हो जाना चाहिए कि बेटा जो भी ऐप डाउनलोड करोगे पहले हमको पूछ लेना, हम वो ऐप इस्तेमाल करके देखेंगे और फिर अपन तय करेंगे कि वो ऐप सही है कि गलत है। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले वो ब्लू व्हेल नाम की एक चीज आई थी, और ब्लू व्हेल नाम की ऐप ने कई जाने ले ली। कई बच्चों ने उसमें उसमें चैलेंजेस थे कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। आखिरी चैलेंज था कि मर के दिखाओ, खुद को फांसी लगा के दिखाओ। तो बच्चे के साथ ये थोड़ी सांठ गांठ कर ले कि जो भी ऐप इस्तेमाल कर रहा है वो आपके साथ चर्चा कर ले। बच्चे को ये सिखाना है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट आता है जो कि डिस्टर्बिंग है, जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, किसी ने भला बुरा कह दिया है या किसी ने कोई प्रेजुडिशियल स्टेटमेंट कर दिया है, बच्चे की जात पात पे, धर्म पे किसी ने कमेंट कर दिया है, तो उसको कैसे रिएक्ट करना है। उदाहरण के तौर पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। अगर तुम डिस्टर्ब हो गए तो तुमने हमको आके बताना है कि ऐसा ऐसा मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर अपन मिलकर तय करेंगे कि उसको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। एक बात बच्चों को बताना जरूरी है कि बच्चा खुद जो जो कंटेंट पोस्ट करता है उस कंटेंट की राइटनेस या रॉन्गनेस, धर्म के बारे में, सेक्स के बारे में, जात पात के बारे में, इस तरह के जो कमेंट्स हैं उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि वहां वो कई बार समस्या की जड़ बन जाते हैं। बच्चे को ये बताना है कि अगर सोशल मीडिया पे उसने कुछ भी ऐसा देखा जिससे वो अपसेट हुआ है, तो आके आपसे चर्चा कर ले, तुरंत रिएक्ट ना करें। एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम लोग कुछ ऐसा आया तो अपन बिल्कुल धनुष बाण लेके खड़े होते हैं, बड़ा रिएक्ट करते हैं, और अपनी रिएक्शन कई बार ज्यादा डैमेज कर जाती है। इग्नोर करे तो मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन हम जो रिएक्ट करते हैं वहां से फिर मामला और बढ़ने लगता है। तो बच्चे को ये बताना है कि ऐसा ना करें। अपने कान हमेशा खुले रखें। बच्चा सोशल मीडिया के बारे में या इंटरनेट के बारे में क्या सोचता है ये अपने को पता होना चाहिए। बच्चे के साथ उसके बारे में संवाद होता रहे, बच्चे की भावनाएं क्या हैं, बच्चे के विचार क्या हैं, ये समझ लें। पेरेंट्स नीड टू बी गुड लिसनर्स, ये बहुत ही आवश्यक है। कई माता पिता को अपनी खुद की आवाज सुनने का इतना शौक होता है कि वो बस सुनाते जाएंगे, उपदेश देते जाएंगे, बच्चा क्या कह रहा है इसका ध्यान नहीं देंगे। तो बच्चा क्या कह रहा है सुन ले। बच्चे की इंटरनेट की समझ क्या है, व्हाट्सएप की समझ क्या है, ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। उसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है या नहीं, बच्चे की सोच में यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसको यहाँ मैंने ठीक करना है। तो ये गुड लिसनर, बच्चा जो भी कह रहा है उसको ध्यान से सुने। जो भी गाइडलाइंस आप और बच्चा मिलके बनाते हैं वो घर में सबको पता होना चाहिए। घर में जो नौकरानियां हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि 1 घंटा डेली तय हुआ है। घर में दादा दादी हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये ग्राउंड रूल्स बनाए गए हैं। नहीं तो ये बड़ा आम सीन है कि मम्मी डैडी काम पे चले गए, दादाजी ने मोबाइल थमा दिया और माँ सिर पीटते हुए मेरे पास आती है, डॉक्टर साहब क्या करें, ये इनके पिताजी तो सब गड़बड़ कर देते हैं। तो ग्राउंड रूल सबको कम्युनिकेट करना बिल्कुल फॉर्मली एक साथ, मैं तो हमेशा बताता हूँ एक साथ बिठाओ, सबको चर्चा करो। चाहो तो बता दो कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बताया है, दीज आर द ग्राउंड रूल्स फॉर द होम। और आखिर में मैं यही कहूंगा इसमें कि सोशल मीडिया या यूज ऑफ स्मार्टफोन should become a mechanism of bonding between parents and children. यानी आपने कितने प्यार से उसको कितनी सिक्योरिटी की फीलिंग देते हुए उसको समझते हुए चर्चा की, तो उससे उल्टा आपका बॉन्डिंग बढ़ना चाहिए, बढ़ सकता है। सोशल मीडिया विवाद और झगड़ों का कारण न बन के एक बॉन्डिंग का कारण कैसे बन सकता है आप में और बच्चे में, मेरे ख्याल से ये ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। तो ये कुछ सुझाव हैं जो मैं माता पिता को देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ श्योर। सर ने बहुत सारे पॉइंट्स जो बताए, दे वर ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स। हमें सबको एज अ पेरेंट एंड एज अडल्ट हमें ये आदत होती है कि हम बच्चों की तारीफ करते हैं। मेरा बचना इतना होशियार, मुझसे नहीं होता है वो कर देता है। मेरा मोबाइल जब लॉक हो जाता है तो वो खोल देता है, मेरा मोबाइल बिगड़ जाता है तो वो सुधार देता है। मेरे बच्चे की तारीफ मैं लोगों के सामने करूं, ये शायद नुमाइश होगी लोगों के सामने मेरे अपने बच्चे की, और उस बच्चे के सामने भी उसकी तारीफ करूं तो उसके मन में एक आएगा, मुझे एक एंटीना आ जाते हैं कि आई नो मोर देन माई पेरेंट्स।
आय नो मोर देन माय टीचर्स, आय नो मोर देन अडल्ट. दीड शहाणा होऊन जातो. दीड शहाणा म्हणू आपण त्याला. तर या दीड शहाणा करण्यामागे आई बाबांचा आणि मोठ्यांचा हात असतो. आपल्याला तो काढायचा आहे. यू नीड टू अपडेट युअर सेल्फ before telling him or before discussing with him the technicalities and the rules and regulations which you need to follow. तो पहले आप आपस में माँ बाप चर्चा करें, उसके पॉइंट्स बनाएं, दादा दादी चर्चा करें, पूरा परिवार पहले बैठ के बात करें और फिर बच्चे के साथ में उसके ऊपर निगोशिएट करें. निगोशिएशन यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा हर बात आपकी मानने वाला नहीं है. कुछ मुद्दे आपको अपने रखने पड़ेंगे, कुछ उसके मानने पड़ेंगे. उस चीज के अंदर ऐसे डिजाइन करें जहाँ निगोशिएशन में तुला एक दिला आणि तू मला एक दे, मी तुला दोन दिले तू एक दे. You need to keep certain points which are negotiable and then come to a conclusion which is of help to the child and to the family as well. तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा और आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. बच्चा 200 की स्पीड में चल रहा है और आप 20 की स्पीड में चल रहे हैं, नहीं चलेगा दोस्तों. जागो, उठो, पहचानो अपने आप को और आप अपनी वो स्पीड पकड़ो जो आपको आपके 20 साल की उम्र में थी. अब आप कहेंगे डॉक्टर मोहता ये बहुत हो गया यार, इनफ इज इनफ, ये क्या करवाने जा रहे हो? पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा जिस स्पीड से भाग रहा है आप उसके पीछे भागते भागते थक जाओगे पर पकड़ नहीं पाओगे उसे. आपको उसे पकड़ना नहीं है, आपको उसे अपने साथ में बाजू की कुर्सी पे बैठ के एज एन अडल्ट टू अडल्ट टॉक करना है और उसके साथ में जैसा भावे सर ने कहा एक रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं. मैं तो उससे आगे एक कदम और आगे कहूंगा कि अगर वो थोड़ा छोटा बच्चा है जो 11, 12, 13, 14 का है तो हमने एक अग्रीमेंट बना के पेपर पे लिख के उसकी साइन और हमारी साइन करके उसको डिस्प्ले कर देना चाहिए कि एग्रीमेंट बना हुआ है. रूल नंबर 4, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं. मोबाइल छोड़ रहे, क्यों देख रहा है इतनी देर, समझ में नहीं आ रहा क्या? जिस सिर्फ उंगली दिखा दी, रूल नंबर 4 इनफ. वो रूल नंबर 4 याद आ जाएगा, वो छोड़ देगा. बार बार बोलने से हमारी बातों की जो इंपॉर्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है. बच्चे सुनते नहीं. और आप ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं. तो रिवोल्ट की जगह दोस्ती करें, दोस्ती की भावना और भूमिका बनाएं और उसके अच्छी तरीके से शेयर करें तो शायद हम सब चीज सही से कर पाएं. सब बहुत मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. डॉक्टर मोहता ने जो पॉइंट कहा ये थोड़ा उससे संबंधित है कि एक बहुत ही आम बात है कि हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स भी देखते हैं और अपने रिश्तेदारी में भी देखते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 1.5 साल का है पर इतना स्मार्ट है, उसको बराबर मालूम है मोबाइल कहाँ रखना, उसको स्वाइप करना आता है. और ये बात बड़े गर्व से बताई जाती है पर अभिमानाने सांगितलं जातं. और कल्पना करें कि घर में 1.5 साल का बच्चा है, उसने लाल इस पे उंगली रखी, उसको क्यों कर दिया, अगला स्वाइप किया, अगला वीडियो आ गया और माता पिता फिर सारे मेहमान, अरे वाह. अब ये दिस एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड. मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ ये गर्व का विषय नहीं है, चिंता का विषय है. उसके हाथ में मोबाइल दिया क्यों जा रहा है कि उसको पकड़े, यानी उसको पता है कौन से डॉट पे उंगली रख के घुमानी है, यानी उसने बहुत बार पकड़ा इसके पहले. तो इतनी कम उम्र में उसको मोबाइल देने का जुर्म आपने किया है. तो ये बात ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि गलत चीज की तारीफ ना करें. गलत चीज की तारीफ हो गई तो क्या होता है वो टेंडेंसी बढ़ती जाती है. बहुत बार पेरेंट्स ये भी डिफेंड करते हैं कि हमारा बच्चा DIY देखता है, दैट इज डू इट योरसेल्फ, और देखता है उसके बाद क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है, दिन भर DIY देख रहा है. तो लेट देम डू समथिंग क्रिएटिव आउट ऑफ इट. तो थोड़ा सा बच्चा और एंगेज हो जाएगा ताकि वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाए. तो हमें ये भी क्रिएटिविटी भी बढ़ानी है. सर साथ ही साथ भावे सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि किसी जमाने में महीने भर पहले वगैरह टिकटॉक आ रहा था, वो बंद क्यों हो गया? बड़े प्यारे प्यारे वीडियो आते थे उस पे. या फ्रैंकली टिकटॉक का जब आता था तो मैं मेरे इस पे आता तो मैं खोलता ही था उसको क्योंकि काफी बड़ा मजा आता है देखने में. बहुत इंटरेस्टिंग थे वो. टिकटॉक के प्रॉब्लम्स को अगर अपन देखें स्पेसिफिकली टिकटॉक तो थोड़ा दो तरह का कहूंगा मैं. एक तो ये कि इंडिविजुअल यंगस्टर्स पे उसका गलत परिणाम होता था. जो गलत परिणाम होता था यानी कैसे, जैसे चैलेंजेस टिकटॉक पे भी आते थे कि मैंने कहीं एक बार पढ़ा था कि अपना स्विच बोर्ड होता है इलेक्ट्रिकल, उसमें जो प्लग डाला जाता है, तो एक टिकटॉक चैलेंज था कि उसके बीच में एक सिक्का डाले, कॉइन डाले. अब वो सिक्का डाला गया, शॉर्ट हुआ, जोर की आग लग गई, कहीं एकदम से फट गया. तो इस तरह के कई खतरनाक चैलेंजेस टिकटॉक पे आते थे. अभी तो बंद है शायद. दूसरा है कि जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंजर डेंजर. कई बार स्ट्रेंजर लोग
टिकटॉक के जरिए संबंध स्थापित करने की कोशिश करते थे, जो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाते थे। और फ्रेंकली कहा जाए तो ये बहुत टिकटॉक स्पेसिफिक समस्याएं नहीं है, और ये समस्याएं जनरल रही हैं, यानी लगभग सारी सोशल मीडिया में हो सकती है। सरकार ने जो बैन किया वो ज्यादा था कि चाइना के कारण भारत में होने वाले समस्याओं की संभावना, यानी देश का डिफेंस, देश की इंटीग्रिटी, देश के अंदर जितने देशवासी हैं उनके आपसी विचारधाराएं मिलना, तो वो चाइनीज कंपनी है और उसके जरिए कुछ गलत प्रोपेगेंडा होने की संभावना सरकार को दिखी। बैन होने का कारण ये था। थैंक यू सर। धोनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मोहता सर, कोरोना काल में बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है बढ़ गया है, आजकल ऑनलाइन टीचिंग के क्लासेस हो रहे हैं, सब कुछ, उनका टाइम बढ़ गया है, तो इसके कुछ अच्छे भी परिणाम है, कुछ बुरे भी परिणाम है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना एक जागतिक बीमारी है जहां उसने हमें घर में बांध लिया है। कई महीने निकल चुके हैं और कई महीने और निकलेंगे, ऐसा हमारा सबका अंदेशा है। इस दौरान बच्चों की स्कूलें शुरू हो गई हैं, कॉलेज शुरू हो गए हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं, समय आपका सबका ऑनलाइन कुछ न कुछ चीज पे जा रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, किसी तरीके से आप कनेक्ट हो रहे हैं और वो चीजों में जा रहे हैं जहां पहले हम कहते थे, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ये कहा कि आप 2 घंटे के ऊपर ना देखें मोबाइल, या 2 घंटे के ऊपर स्क्रीन ना देखें, स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती थी कि छुट्टी के दिन 3 घंटे, बाकी दिन 2 घंटे। साइकेट्री एसोसिएशन कहती थी कि 1 घंटा बाकी समय और बाकी छुट्टी के दिन 2 घंटे। अलग अलग एसोसिएशन ने अलग अलग तरीके से, सारे डॉक्टर कहते थे स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी शोन, शुड नॉट बी गिवन। अब स्क्रीन टाइम बढ़ गया है 2 घंटा, 3 घंटा। 3 साल के बच्चे के लिए 2 घंटे की स्कूल हो रही है। अब ये अति हो रहा है। गवर्नमेंट के जो रिकमेंडेशंस हैं, वो रिकमेंडेशंस के हिसाब से साल के नीचे के बच्चे को सिर्फ आपको 2 घंटे एंगेज करना है। 2 घंटे के बीच में भी 25 मिनट, 5 मिनट की गैप, 30 मिनट, 10 मिनट की गैप, इस तरीके से गैप कर करके आपको मैक्सिमम 2 घंटा स्क्रीन दिखाना है। पर कुछ स्कूलें प्रूफ करने के लिए अपने आप को कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम बच्चे को ज्यादा पढ़ा रहे हैं, हम बाकी स्कूलों से हटके हैं, या उनको फीस नहीं आ रही है स्कूलों पेरेंट्स की वजह से, इसकी वजह से शायद वो ज्यादा कर रहे हैं कि ताकि हमें वो फीस उनसे मिल जाए। तो ये अति जो हो रहा है बच्चों के ऊपर, ये ज्यादा घंटे का एक्सपोजर हो रहा है, और ज्यादा घंटे का एक्सपोजर आज हम टाल नहीं पा रहे हैं, ये हमारे बस का नहीं है। अब इसका क्या करें? इसके लिए हमारे पास में आज तो कोई उपाय नहीं है, ना कोई सजेशन है। हम सजेशन आज बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कितने घंटे क्या चलेगा पता नहीं है। पर एक कहा जाता है कि इंप्रेशनेबल एज के अंदर में आपने वो चीज इंप्रेस करनी है, और उतनी देर के लिए इंप्रेस करनी है जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी से मिड टर्म मेमोरी में जाए, और मिड टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। आप उस चीज का अगर ध्यान रखते हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे का मैक्सिमम अटेंशन लेवल अचीव करना चाहिए। 30 मिनट गैप, 30 मिनट गैप करके अगर ये अचीव कर रही है स्कूल तो सही कर रही है, अगर इससे ज्यादा कर रही है तो सही नहीं कर रही है। ये मेडिकल एडवाइस के हिसाब से कहूंगा आपको। पर अगर आप भी काम कर रहे हैं तो आपने भी बीच बीच में ब्रेक लेने हैं। आप अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे कि आप बैठे बैठे कुर्सी पर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे आपने हाथ को रब करना है और 10 सेकंड के लिए आंखों को बंद करना है, या आप उठ के पांव स्ट्रेच कैसे करें। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं। आप ढूंढिए अपने आप के लिए और बच्चों के लिए कि इस समय हमने बीच बीच के गैप में क्या करना है। हमारा सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमने 30 मिनट के बाद में 5 मिनट की जो गैप करी, उस 5 मिनट के अंदर में हमने फिर से मोबाइल को पकड़ लिया, और इस समय हमने वो देखा जो हमने वो घंटा भर जो नहीं देखा था। वो हमने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने फोटो डाला था, उसका क्या हुआ। हमने फेसबुक पे देखा कि मेरे वो रेसिपी मैंने भेजी थी, वो रेसिपी के ऊपर क्या हुआ। मैंने गार्डन कैसा लगाया था वो लिख के भेजा था, वो वीडियो के ऊपर कितने लाइक्स है, हमने 5 मिनट के लिए वो चीज करी। वो चीज ना करते हुए 5 मिनट के गैप में आपने उठना है, स्ट्रेच करना है, जंप करना है, जॉग करना है। मैं एडोलेसेंट, टीनेज और बच्चों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा नाश्ता कर लेना है, थोड़ा सा जरा सा घर का 2 चक्कर लगा लेना है, स्किपिंग करना है, और 5 मिनट बाद में वापस अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाना है।
बड़ों के लिए आप उठिए, स्ट्रेच करिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा ध्यान बटाइए, भगवान के सामने अगरबत्ती लगा के आ जाइए, किसी के सामने कैंडल लगाना है वो लगा लीजिए, एक जरा सा चक्कर लगा के दादाजी दादी जी अपने रूम में उनको स्वास्थ्य पूछ के आ जाइए, किचन के अंदर में आपने जो काम छोड़ा हुआ था वो सही हो रहा कि नहीं हो रहा वो देख के आ जाइए। तो आपको अपने आप को उस काम में से थोड़ा सा हटा के ये सोचना है कि मैं बीच के गैप कैसे भरूं। दूसरी, जैसे भावे सर ने कहा कि हम इस समय चर्चाएं बहुत सारी करते हैं पर निगेटिव चर्चाएं ज्यादा होने लगती हैं। कोरोना की चर्चा इस समय घर में बिल्कुल नहीं करनी है। ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल सबसे पहले स्विच ऑफ करने हैं। ब्रेकिंग न्यूज वो इस तरीके से बड़े आंखें करके कहता है ब्रेकिंग न्यूज, और दूसरे कमरे में बच्चा बैठा हुआ सहम जाता है कि बाप रे अब क्या हुआ पता नहीं, कितने ऊपर गए मालूम नहीं। एम्बुलेंस का सायरन बजते जाता है, इतना एम्बुलेंस का सायरन तो जिंदगी भर मैंने नहीं सुना। मैं 58 साल का हो गया हूँ। जितना एम्बुलेंस दिन में घूमती है, वो एम्बुलेंस की आवाज सुन के घबराहट होती है हमारे मन में, डॉक्टर होके भी, तो बाकी लोगों के मन में तो होती ही होगी। वो बच्चों के मन में एम्बुलेंस, ब्रेकिंग न्यूज, वो बड़ा सारा बड़ा चढ़ा के जोर जोर से बोलना, और वो टीआरपी गेन करने के लिए अपने आप में से कुछ न कुछ बताने की कोशिश करना। प्लीज वो चैनल बंद कर दीजिए। उस चैनल पे आप भी मत देखिए। आप भी घबराते हैं, बोलते जरूर नहीं है पर घबराहट तो मन में होती जरूर है। तो कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतिए, पर कोरोना को मत देखिए, कोरोना के बारे में मत सोचिए, और सारी सावधानियां बरत के कोरोना से हटिए। भावे सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरा तो एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है, प्राइवेट न्यूज चैनल देखना बंद करें। बिल्कुल बराबर कहा मैं सर तो इस हद तक जाऊंगा। क्या होता है कि जो मोटा मोटी बातें होती है वो अपने को मालूम पड़ ही जाती है। नागपुर में प्रमाण बढ़ रहा है कम हो रहा है मालूम पड़ जाता है। नागपुर में कहाँ का हॉस्पिटल खुले हैं जहाँ की कोविड पेशेंट की एडमिशन हो सकती है, अपने को आईएमए से मालूम पड़ जाता है, पेपर में से मालूम पड़ जाता है। पेपर में प्राइवेट चैनल में बहुत गड़बड़ होती है। और अब ऐसे अब डॉक्टर मोहता ने बाल मन की बात की, तो छोटे बच्चों के मन पे एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। मेरी 4 साल की नातिन है, कल वो चिल्ला रही थी पागल पागल। कौन पागल? कहती कोरोना पागल। मैंने मम्मी म्हटलं असं का म्हणतेस? पहा ना काय हालत करून ठेवली है। फिर वो मेरा साइंटिफिक अमेरिकन का मैगजीन मंगाता हूं मैं, उसके कवर पे कोरोना का फोटो था, उसने साइंटिफिक अमेरिकन उठा के जमीन पे जोर से पटका। तो अब ये सब जो फीडिंग होता है चारों तरफ से, कोरोना कैसा बुरा है, मुझे उसे समझाना पड़ा कि बेटा कोरोना केवल एक वायरस है, उसको दिमाग नहीं है, वो अच्छा या बुरा समझता नहीं है, वो केवल वायरस है, केवल प्रोटीन है, लिपिड है, दैट्स इट। तो इवन बड़े लोग भी ऐसे मीडिया वीडियोस या कुछ ऐसी चैट्स या कुछ ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इवन हर चीज में लोगों को प्रॉब्लम जा रही है। जो माइल्ड केसेस होती है उसकी सिवेरिटी बढ़ रही है। सो मैं हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि आपके पास जो भी चैट्स आ रही है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड ना करें, उसकी ऑथेंटिसिटी को समझे और उसके बाद ही आपको फॉरवर्ड करना है। और जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास कोई चैट आ रही है तो उसको हमें पूरे दुनिया में फैलाना है। इट इज नॉट नेसेसरी। सो फैलाना नहीं है हमको, ये मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी। आज का हमारा आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया सिर्फ बुरा है या कुछ अच्छाइयाँ भी है? हर एक चीज में सिर्फ बुराइयां नहीं हो सकती, कुछ अच्छा भी हो सकता है। मेरा उत्तर है कि इट्स अ मिक्स्ड बैग। यानी बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मैंने आपको 12 बुराइयां भले ही बताई, पर मैंने आपको 5 अच्छाइयां भी बताई। अच्छी बात है, डेफिनेटली। मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा था कि नो टेक्नोलॉजी नो फैसिलिटी इज बैड। उसका इस्तेमाल हम कितना अक्ल से करते हैं, कितना सोच के करते हैं, बच्चों को किस ढंग से उसके बारे में इनपुट देते हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया बहुत काम की चीज है, इसमें कोई सवाल नहीं है। अब सोशल मीडिया अगर मान लो ना होता, व्हाट्सएप ना होता, तो मंजूषा जी, मैं, डॉक्टर मोहता, अर्चना, हमको सबको मिलके आज का प्रोग्राम अरेंज करना, एक दूसरे से शेयर करना, फोटो भेजना, बायोडाटा भेजना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता। डिफिकल्ट। तो सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। किसका बर्थडे कब है, बर्थडे को विश कर दिया। अब ये बहुत सारी बातें जो सोशल मीडिया में अच्छी हैं, डेफिनेटली। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है ऐसा मैं कहूँगा। बुराइयां हम ढूंढते जरूर हैं, पर बुराइयां ढूंढते इसलिए हैं कि हम कहीं ना कहीं उस चीज के लती हो गए हैं, एडिक्ट होते जा रहे हैं। एडिक्शन जब आता है तो हमें बुराइयां ढूंढना पड़ता है और निकालना पड़ता है कि ये एडिक्शन क्यों हो रहा है। भावे सर ने कहा कि अपने आप को एनालाइज करिए,
अंदर झांकिए, गिरेमान में झांकिए, सोचिए कि ऐसी क्या चीजें आपने जो नहीं करी थी जिंदगी भर वो अब कर सकते हैं अगर, तो वाई गो टू सोशल मीडिया, वाई गो टू मोबाइल, वाई गो टू इंटरनेट, वाई गो टू सब गैजेट्स। आप अपने आप में गाना चाहते थे, आज क्यों नहीं? ढूंढिए, फॉलो करिए, भावे सर को फॉलो करिए, भावे सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इनके खुद की फॉलो करिए सर को, एक फॉलो तो करिए। देखिए, आप गाने की शुरुआत अगर करेंगे आज, लगेगा आपको कि मैं यार 50 साल का हो गया हूं, कैसे गाना सीख सकता हूं। सीखना आसान है, सोचना जरूरी है कि मुझे सीखना है। ये सीख हमें इसी सोशल मीडिया के थ्रू आएगी, इसी कनेक्शन के थ्रू आएगी। कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं एक चैनल होगा जो आपको सिखाएगा ABCD, कहीं ना कहीं आपको सिखाएगा सारेगामापधनिसा, कहीं ना कहीं आपको सिखाएगा ड्राइंग पेंटिंग में ब्रश कैसे पकड़ूं, नाइफ कैसे पकड़ूं, नाइफ पेंटिंग कैसे करूं, मैं पेपर क्राफ्ट कैसे करूं, मैं अपने अपने हॉबीज को कैसे फॉलो करूं। तो हॉबीज को फॉलो करने के लिए भी हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, सिर्फ एडिक्शन बुरा है उस चीज का। हम समय बांधें, जैसा सर ने कहा कि सोने के 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। बहुत सारे नियम हम अपने लिए बांध सकते हैं जो आसान हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कठिन है, पर वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपका समय किसी और चीज में जब व्यतीत होने लगेगा तो आपको लगेगा हाँ मेरे पास तो अब समय ही नहीं बचा है मोबाइल पे जाने के लिए, या व्हाट्सएप पे ढूंढने के लिए मुझे लाइक मिले या डिसलाइक मिले, या इंस्टाग्राम पे जाने के लिए कि मेरे फोटो पे किसने क्या कमेंट किया, या ट्विटर पे जाने के लिए कि मेरे ट्वीट को कितने लोगों ने पसंद किया या उसके ऊपर और रीट्वीट कितने लोगों ने किया। तो ये मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब मैं अपने आप में खुश रहूंगा, अपने परिवार में खुश रहूंगा, अपने परिवार के 4, 5, 6 लोगों में, नाती पोती के साथ में खुश रहूंगा, जब उनके साथ में समय बिताऊंगा, तो शायद मुझे वो जो बुराइयां हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पिछले 2 घंटों से, वो बुराइयां दिखेंगी ही नहीं सोशल मीडिया में। मैं मंजूषा जी बंद करने के पहले 2-3 लाइनें बोलना चाहूंगा और फिर आपके हाथ में माइक देना चाहूंगा। 2-3 अलग अलग जगह से हैं तो सुनाना चाहूंगा, अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। सर इरशाद। किसी युवा को नौकरी मिले, किसी कुंवारे को छोकरी मिले, किसी युवा को नौकरी मिले, किसी कुंवारे को छोकरी मिले, कोई नया नायक जन्मे तो कोई नया गायक जन्मे, ये सोशल मीडिया है। क्या बात है सर। इसके बाद में उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी की 4 लाइनें दिल के इंसानियत पे बात कर रहा हूं और फिर माइक हैंड ओवर करूंगा। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। क्या बात है, क्या बात है सर। कुछ हमारे दर्शकों के सवाल आए हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो हमारे IMA साइकेट्री सोसाइटी, पीडियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से continuous streaming of suicidal news on social media should be stopped, है ना। ओपिनियन ऑफ पैनलिस्ट, आप क्या कह सकते हैं उसमें, या हम IMA की तरफ से कोई पहल कर सकते हैं क्या उसके लिए? मीडिया पे सुसाइड की न्यूज किस तरह आई, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा बिल्कुल इतिहास से ही देखा गया है कि एक आधी सुसाइड की खबर को जितना डिटेल में दिया जाए, जितना उसको स्पेस दी जाए, कई बार सुसाइड करने वाले को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, तो इससे समाज में सुसाइड होने का प्रमाण ज्यादा बढ़ता है। ऐसा बहुत बार देखा है कि अगर कोई एक आधा सेलिब्रिटी सुसाइड करता है तो उस समाज में अगले कम से कम 1, 2, 3 महीनों तक सुसाइड का जो इंसिडेंस रेट है बढ़ जाता है। मुझे याद है उसमें बहुत छोटा था मैं, मर्लिन मनरो जो अमेरिकन एक्ट्रेस, उसने कुछ 1966 में शायद सुसाइड किया स्लीपिंग पिल्स खा के। और अमेरिका के उस समय के स्टैटिस्टिक्स थे कि मर्लिन मनरो के सुसाइड के बाद अगले 1 महीने तक अमेरिका में जो सुसाइड का प्रमाण था वो 4 गुना बढ़ गया। तो ये होता है। तो मेरे ख्याल से मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस न्यूज को कैसे पेश किया जाए। तो मेरे ख्याल से IMA का एक इम्पोर्टेंट रोल ये हो सकता है कि मीडिया के लिए सजेशन तैयार कर सकता है कि हाउ शुड द न्यूज ऑफ सुसाइड बी रिपोर्टेड।
एक आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है, हमारी नेशनल सोसाइटी, तो उन्होंने मीडिया को गाइडलाइंस दिए कि सुसाइड कैसे रिपोर्ट हो, कैसे ना हो। बहुत सारे डेवलप्ड देशों के भी अपने अपने गाइडलाइंस है, अमेरिकन एसोसिएशन की गाइडलाइंस है उनके मीडिया की। तो मेरे ख्याल से ऐसे गाइडलाइंस बनाना और मीडिया में उसको फैलाना, प्रोपोगेट करना, आई थिंक ये बड़ा जरूरी है। इवन एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी में जब हम चर्चा करते हैं, और हम भी एक मॉड्यूल हमारा डेवलप हो रहा है जो अगले महीने रिलीज हो जाएगा सुसाइडल प्रिवेंशन के ऊपर, उस मॉड्यूल के अंदर में भी हमने भी कुछ गाइडलाइंस डिजाइन करे हैं जो एडोलेसेंट को हैंडल कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियंस उनके बीच में। और ये गाइडलाइंस भी मीडिया के लिए भी है, मीडिया पब्लिकेशन हाउसेस के लिए भी है, एंड इनफैक्ट पेरेंट्स और परिवार के लिए भी है कि हमने कौन से विषय पे कौन से समय क्या चर्चा करनी है, और चर्चा करनी है या नहीं करनी है। अगर उन्होंने चर्चा निकाली है तो चर्चा को दबाना नहीं है। अगर बच्चों ने कहा कि यार वो देखो सुशांत सिंह राजपूत ने कैसे सुसाइड कर लिया, ए चुप, कशाला ते चर्चा करतो ते केले त्यांनी केलं गेला, तो ऐसा बोलने के बजाय उसे बोलने दीजिए, मन की बात निकालने दीजिए, आपके साथ शेयर करने दीजिए। मुझे एग्जाम में कम मार्क मिलते हैं, इसके ऊपर से लोग सुसाइड करने लगते हैं, कम मिलेंगे इसका अंदेशा होता है इसलिए करने लगते हैं। तो इन सब के गाइडलाइंस IMA के थ्रू भी मीडिया को जाने चाहिए, और ये कैसे पब्लिकेशंस आएंगे ये अगर हमने डिफाइन कर लिया तो शायद जो सर ने कहा कि जो मीडिया में से लोग उस चीज को फॉलो करने की टेंडेंसी आ जाती है कुछ महीनों के लिए, वो हमारी कम हो जाएगी। I would like to give one comment. You please give us the guidelines. We will definitely come out with the guidelines through IMA. जो मैं आपके साथ जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के गाइडलाइंस है वो शेयर करता हूँ, उसकी हेल्प ले सकते हैं। We can sit together and publish those guidelines. We can compile and forward the way we have compiled the home isolation guidelines through IMA, and that has been circulated all throughout Maharashtra. Like that, we can compile these guidelines and we can circulate. Sure. Archana, I believe this is not the right time to talk about suicide and send suicide messages, because this is everybody is into negative phase. So let Corona be over and then we'll publish this. This is my personal opinion. नहीं, आई सपोज अर्चना जी जो कह रही है वो मीडिया के लिए कह रही है, यानी मीडिया को गाइडलाइंस भेजना, मीडिया को भेजना है। सिर्फ मीडिया तक जा रही है तो ठीक है, हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं जाए। नहीं, सोशल मीडिया, मीडिया तो मीडिया के बैरन जो है वहां तक जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वहीं तक जाना चाहिए। रिपोर्ट करना है तो ऐसा करना है, नहीं तो यस यस यस, वो तो जाना चाहिए। So anything you want to add, Archana madam? It was a wonderful webinar, and the things were very nicely explained by both the faculties, and you have the moderator was also very wonderful. So Thank you. Thank you. it was all in all a very good webinar, a public forum we should call it, because many parents have also joined this. And on behalf of IMA, I am thankful to Dr. Sudhir Bhave sir and Dr. Rajiv Mohta, and to you also, Manjusha. This program we have taken under Mission Pink Health, and we are, sir, for your kind information, we would like to tell that we are, this was our first program today. In continuation, we are taking up to 30th. Every day we are having the programs. Tomorrow, Manjusha is going to School of Scholars. There she will be taking, she's not going physically, basically through webinar only for the students of 5th, 6th and 7th, use of social media. Then for 8th, 9th and 10th, Dr. Prajakta Kaduskar will be taking on Tuesday. On Wednesday, Dr. Jaya Shivalkar is taking, and one more in pipeline on Thursday that has been not fixed. The schedule has not been fixed. And we will continue this forum. We will continue with educating people, and let us make positive use of this social media. If Rishi is there, Rishi will give vote of thanks. Rishi is not there. Is not there. So I have to give vote of thanks also. So thank you. And I am very much thankful to the participants without whom this show would not have been successful. So thank you. Thanks a lot. And thanks to Deepen of DigiShield for providing this wonderful platform. बहुत अच्छे से flawless program हुआ. Deepen, we are very much thankful to you. हम लोग भी बहुत थैंकफुल हैं, बहुत हमको ये बड़ा मजा आया, and in fact both of us would like to thank IMA for this wonderful program and the wonderful planning. Thank you so much.